Yeah, hi. Very good evening, Good sir. evening, Good sir. evening. Good evening, good evening, Good evening, Rajesh. good evening. So, is my screen visible? Yes, sir, visible. Let's Yes, start then. sir. Yes, sir. Screen is visible and audio is very clear, sir. Good. I have been speaking since last 6 hours at a stretch with the break of 15 minutes only. आज ऐसा हुआ था कुछ. There was some problem in the morning. There was some electricity issue at my area. So I need to reschedule the class which happens in the morning at afternoon. So at since 3 p.m. I have been engaged in the session 3 to 5, then 5 to 8:30, then again your session. So my time got collapsed, my energy got lost. But let's try. After this also, I need to go for a shoot of one of the LMS video, and tomorrow I have my office shift. देखते हैं क्या होगा मेरे साथ आज. So let's talk about the cloud. So in the previous session, we discussed about the cloud computing. We understood what is cloud computing, what is the need of cloud computing for the business. We talked about the on-premises scenario also, and we discussed about the limitations of on-premises. On-premises में क्या-क्या कमियां थी, why the cloud came. So these things we have discussed so far. Now let me know if you have any issue from this topic. Otherwise, I will proceed further. किसी का कोई क्वेश्चन है तो you can definitely ask. Silence means no. Okay, good. So let's proceed further then. I hope you have got the notes. Notes वगैरह मिल गए थे ना सबको? Yes, sir. Okay, good. वीडियोस भी मिल गई थी previous class की? Yes, sir. Okay. So Rakesh, where we can get that video, that previous class? video will be provided by the admin team. So you can ask from your recruiter. Okay. The notes I can share. Okay, Rakesh. Okay. Yeah. So as I mentioned earlier also, no one is going to ask you what is cloud computing during the interview. कोई नहीं पूछेगा. So don't remember this definition. Just try to have some concept clarity. Even I don't suggest anyone to remember anything. Just have some concept clarity. Do your practicals well so that if someone asks you, you should be able to create your own answer. रट्टे वट्टे मत मारना, because at one point of time you will forget. ये सब चीजें फिर लंबे टाइम तक चलती नहीं है. So I always focus on the concept clarity along with the practical so that you can create your own definition. आपसे कोई पूछता है what is virtual machine in Azure? If you have remembered the definition, you would be able to speak, but maybe after 6 months, 7 months, 1 year, you will forget about that. So if you know the concept, why we use the virtual machine, you can create your own definition. So I believe in that kind of study. So रट्टे वट्टे मारने को लेके मत पढ़ना, और कोई इतना केयर भी नहीं करता इंटरव्यूज में. उनको प्रैक्टिकल आंसर्स चाहिए. इफ यू आर एबल टू कन्वे देम, दैट इज फाइन. उनको आप इस तरीके से बताओगे वर्चुअल मशीन स्टैंड्स, वर्चुअल मशीन इज वन ऑफ द आईएएस सर्विस इन एज्योर, इट इज यूज्ड टू डिप्लॉय द सर्विसेज, कमीशनिंग, डीकमीशनिंग एंड कंप्लायंस प्रोसेस, तो उसको समझ में नहीं आएगा. इफ यू विल टेल हिम सिंपली दैट virtual machine we use on the Azure cloud for running the server environment, for running any kind of services, वो कन्विंस हो जाएगा कि ठीक है बंदे को प्रैक्टिकली पता है. और जिसने रियल में काम किया होता है ना, उसको रट्टे वाली डेफिनेशन से कोई मतलब भी नहीं होता. इंटरव्यूअर आर वर्किंग इन द कंपनी, सो दे डोंट केयर अबाउट द डेफिनेशंस और दिस काइंड ऑफ स्टफ. कोई क्लाउड पूछता है क्या है, समझा दो क्लाउड क्या है भाई. क्लाउड इज अ मॉडल where we are accessing the data center of cloud service providers and we are paying them the rent on pay as you go basis. So whatever we want to use, we can just take it on the rent, and instead of that we need to pay the charges. That is cloud. अब ये सब याद करने बैठोगे तो फिर तुम्हारे ऊपर है. Now let's proceed further. थोड़ा आगे चलते हैं. And today I will complete the theoretical part so that from the next class we can start working on the Azure portal. ये सौरभ जो लाइनें लाइनें खींच रहा है ये मत खींचो, ये मेरे को मिटानी पड़ती है नहीं तो. Okay. So today I will be discussing about the types of cloud computing.
what types of cloud computing models do we have? कितने types के cloud computing model है market में, that I will discuss today. So there are two types of model, the service delivery and the deployment. Pooja wants to ask something. Yes, Pooja. सर मुझे ये पूछना था कि जैसे कि हमें इंटरव्यू में प्रैक्टिकली क्वेश्चन मतलब उसके लिए भी हेल्प डेस्क वगैरह के इंटरव्यू के लिए भी पूछे गए थे जैसे सपोर्ट वगैरह के। हम्म तो अब जब हमें क्लाउड में पूछेंगे तो वो टाइप से ही हमारा प्रिपरेशन रहेगा ना सर कि हम प्रैक्टिकली हैंडल कर पाए। उसी टाइप से रहेगा, डोंट वरी. ओके सर, ओके सर, ओके। I will prepare you for all the questions as well and we will be focusing on the practical only, क्योंकि वैसा वाला सीन नहीं है कि थ्योरी करा के मैं खत्म कर दूंगा. This is completely practical based training. ये सर क्योंकि वो ठीक है, सिनेरियो बेस्ड ही पूछते हैं मतलब। सिनेरियो बेस्ड ही पूछेंगे वो, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करेंगे व्हाट इज वीएम व्हाट इज क्लाउड, ऐसे क्वेश्चन नहीं करते वो. यस, सिनेरियो बेस्ड करेंगे, ट्रबल शूटिंग के ऊपर फोकस होगा, सो दैट यस, यू शुड नो. ओके सर, और यस। ये इंटरव्यू इतना इजी नहीं होगा जैसे आप लोग सोच रहे हो कि बहुत से अ लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग फ्रॉम द ओजेटी बैकग्राउंड फ्रॉम ईविजन, जो ओजेटी का कोर्स किया होगा आप लोगों ने, देन यू गॉट द जॉब इन द डेस्कटॉप सपोर्ट एंड सर्विस डेस्क. सो यस सर, यस। इंटरव्यू वाज क्वाइट इजी. उस टाइम पे तो इंटरव्यू इजी था आप लोगों का, क्योंकि व्हाट इज डीएचसीपी, व्हाट इज डीएनएस, व्हाट इज आउटलुक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीएसटी ओएसटी, हाउ टू चेक द आईपी, हाउ टू चेक द मैक, व्हाट इज ओएसआई, ये सब पढ़ के जॉब लग गई. बट और वो भी 15-20 दिन में भी, आई थिंक 15-20 दिन या 30 डेज में आप लोगों के कोर्स भी हो गए होंगे एंड यू गॉट द जॉब. बट हियर दिस इज अ डोमेन स्पेशलाइजेशन जॉब, सो डोंट एज्यूम दैट यू विल बिकम द क्लाउड एक्सपर्ट ओवरनाइट. ऐसा कुछ नहीं होने वाला. प्रैक्टिकल पे अगर फोकस नहीं करोगे यू विल एंड अप रिजेक्टिंग फ्रॉम द इंटरव्यूज, क्योंकि ये रूल है, इंटरव्यू में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन ही होंगे, नो सिंपल क्वेश्चंस. सो आई विल प्रिपेयर यू अकॉर्डिंगली, बट प्रैक्टिकल इज योर्स. मैं सब कुछ कराऊंगा बट प्रैक्टिकल अल्टीमेटली तुम्हें ही करना है, और एक बार प्रैक्टिकल करने से भी नहीं चलेगा, यू हैव टू डू इट एटलीस्ट फॉर 2 or 3 times सो दैट इट विल बी क्लियर इन टू योर माइंड. सो बीच बीच में रैंडम प्रैक्टिकल्स करते रहो. ऐसा नहीं है कि आज इस मंथ में जो टॉपिक हुआ है, इन द मंथ ऑफ मार्च यू विल फॉरगेट अबाउट इट. सो द बेटर इज पिक द बेस्ट टॉपिक्स एंड डू द प्रैक्टिकल रैंडमली. सारी चीजों के प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं है. आई विल गिव यू सम केपीआई इंडिकेटर्स कि ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दिस शुड बी वेरी स्ट्रांग, क्योंकि हम हर चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकते. सो पिक योर टॉप 5 or 10 skills from the cloud and during the interview just mention it on the resume. When the interview will happen, just tell it to the interviewer that I'm expert in this area, you can ask me anything. So उस हिसाब से तैयारी करोगे then you will be selected. सब कुछ पढ़ने की कोशिश करोगे, nothing will happen. So now let's talk about the types of cloud computing. So if I talk about the types of cloud computing, so it revolves around the model. ये model के हिसाब से काम करता है. The first model is service delivery model and the second model is deployment model. As per the service delivery model, we have 3 types of cloud. We pronounce this as IaaS, PaaS and SaaS. इसको ऐसे pronounce करते हैं, IaaS, PaaS and SaaS. Infrastructure as a service, platform as a service and software as a service. If I talk about the type of cloud from the deployment perspective, then it is public cloud, hybrid cloud and your private cloud. So these 3 are the types of cloud as per the deployment. मतलब cloud के जो सर्विस प्रोवाइडर है, कौन है क्लाउड के सर्विस प्रोवाइडर? माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, Google, Rackspace, Oracle, HP. These are the service providers जो cloud देते हैं हमें. So as per the service provider, what kind of service they can offer us? मान लो if I go to the Microsoft company, so Microsoft have their cloud called Azure. Microsoft का cloud कौन सा है? Azure. So if I go to the Azure person, how they can provide their infrastructure to us on the rent, वो हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या प्रोवाइड कर सकता है रेंट पे, दैट इज योर सर्विस डिलीवरी मॉडल. व्हाट दे कैन ऑफर अस. मेरे को चाहिए, लेट्स से आई नीड सर्वर्स, आई नीड स्टोरेज, आई नीड लोड बैलेंसर्स, आई नीड फायरवॉल्स. सो व्हाट दे कैन ऑफर एंड हाउ दे कैन ऑफर एंड हाउ दे विल चार्ज अस. बेसिस ऑन व्हाट क्वालिटी दे आर गोइंग टू चार्ज अस, किस बेस पे वो मेरे से चार्जेस करेगा. सो दैट इज योर सर्विस डिलीवरी मॉडल, that what kind of service they can offer us. The second thing is deployment. Deployment means जो सर्विस मैं उनसे मांग रहा हूं,
the service that I am accessing from them, what will be the accessibility, मैं उसको कहाँ से access कर सकता हूँ. If I want to create a IT infra, cloud is all about IT infra. IT infra या तो ऑन प्रेम पे बना लो या क्लाउड पे बना लो. सो क्लाउड इज ऑल अबाउट व्हाट? IT infra मींस डेटा सेंटर, उसी का गेम है ना क्लाउड. सो इफ आई एम क्रिएटिंग माय डेटा सेंटर, if it is in on premises area, then from where I can access it, मैं उसको कहाँ तक access कर सकता हूँ. And if I am creating my IT infra on the cloud, then what will be the accessibility, from where I can access it, मैं उसको कहाँ से access कर सकता हूँ. So that is called deployment model. कि अगर मैं कोई IT infra setup कर रहा हूँ in the on prem or in the cloud, then what will be the accessibility, मैं उसको कहाँ से access कर पाऊंगा. What control will be under my hand, कितना कंट्रोल मेरे पास होगा, कितना कंट्रोल क्लाउड वालों के पास होगा. सो this is all about deployment. So let's first talk about the service delivery model. So as per the service delivery, we have three models now: IaaS, PaaS, and SaaS. So let's talk about it. See, this is one of the diagram, or you can say this is one of the picture taken from the Google. मैंने नहीं बनाया, Google से कॉपी करा हुआ है. Let's try to understand the cloud service model from the service delivery perspective. So generally what happens when I talk about the IT infra, जब मैं IT infra की बात करता हूँ, या तो मैं उसको ऑन प्रेम लगा सकता हूँ, राइट, या तो मैं क्लाउड पे बना सकता हूँ. I can create my infra either on premises or I can make it on the cloud. अब अगर मैं on premises लगा रहा हूँ, let's say I have a IT infra of my company and it is on premises. So in the on premises what I will do, अगर मुझे एक IT infra बनाना है on premises में, on premises means physical. In my company I will use a big room where I will keep everything physical. So what I need networking devices. मुझे networking device लाने पड़ेंगे. I need to bring the storage devices. I need to bring the physical servers. Virtualization that can also be used. एक single server के ऊपर multiple OS install करने के लिए what I need to do? Virtualization. OS, I also need OS, Linux, Windows server. I also need middleware and runtime. ये अभी मैं डिस्कस करूंगा क्या होता है. So I also need middleware and runtime, and whatever application I want to run, I also need that application. मान लो मेरी कोई business application है, let's say YouTube I want to run. So YouTube is my business application. I want to run Gmail on my server environment. I want to run a website which is useful for the online shopping. So these kind of business applications I want to run. So regarding everything, if I want to set it up on-prem, so I need to purchase the entire infrastructure physically. I need to set up everything physically. मुझे सब कुछ अपनी कंपनी में लगाना पड़ेगा. That is the concept of on-prem. And the admin team, the IT admin team, they will be responsible for managing the complete infrastructure. पूरा infrastructure वो manage करेंगे. Whether it is network device, whether it is storage, whether it is server, whether it is OS, whether it is application. And for every task, there will be separate team. यही सब पढ़ा है अभी तक हमने. But if we go to the cloud, so under the cloud, if you will choose any cloud, अगर आप कोई भी cloud choose करते हो, let's say I have chosen Azure. बहुत सारे क्लाउड है मार्केट में, Azure, AWS, GCP, Alibaba. So let's say I choose Azure. मान लो मैंने माइक्रोसॉफ्ट का Azure चूज किया. So Azure is what? Azure is my cloud service provider. Microsoft is my cloud service provider, जिससे मैं क्लाउड ले रहा हूँ. So now my company, let's say I am HCL. मान लो मैं HCL हूँ. I am running everything on premises now. But I have decided to move to the cloud. हमने decide किया कि यार ये तो बेकार है on prem. I want to move to the cloud. So I will go to the Microsoft company. I will approach to the Microsoft and I will say that I want to use your Azure. मुझे आपका Azure use करना है. Now they will ask. अब वो हमसे पूछेंगे that what do you want? क्या use करना चाहते हो? What do you want? What is your requirement? So as per the requirement, they will quote us three things. वो हमें तीन चीजें सजेस्ट करेंगे that we can offer you infrastructure as a service. कौन सजेस्ट कर रहा है? Microsoft. We can offer you infrastructure as a service. We can offer you platform as a service and we can offer you software as a service. तो हम आपको तीन चीजें दे सकते हैं. Now you tell me, you are the HCL, you tell me what do you need? तुम्हें क्या चाहिए? अब मैं कैसे डिसाइड करूंगा? So if I just need the infrastructure on rent,
मुझे सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सेंस आई नीड ए सर्वर, सर्वर को यहाँ पे बोलते हैं वीएम, आई नीड ए वर्चुअल मशीन, मुझे सर्वर चाहिए वेयर आई विल इंस्टॉल माई ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसपे मैं ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करूंगा एज ए HCL, मतलब मैं उस पर लाइनक्स डालूंगा या विंडो डालूंगा, दैट इज माई चॉइस। देन ऑन टॉप ऑफ इट आई विल रन माई सर्विस, जो भी मुझे चलाना है, DHCP, DNS, एक्टिव डायरेक्टरी, फाइल सर्वर, एप्लीकेशन, कुछ भी चलाना है, दैट आई विल रन, बट आई नीड ए VM, मुझे चाहिए तुमसे VM। आई डोंट वॉन्ट टू मैनेज एनी काइंड ऑफ फिजिकल VM, मुझे फिजिकल VM नहीं चाहिए। आई विल नॉट टेक केयर ऑफ द फिजिकल सर्वर, उस पर जो भी अपग्रेड करना होता है, बायोस अपग्रेड, हार्ड डिस्क अपग्रेड, firmware upgrade, that I don't want to do, मुझे नहीं करना। If the physical server goes down, that I don't want to take care, मुझे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेनी, that should be your responsibility। इस पे जो नेटवर्किंग करनी है, I also don't want to take care of that। इस पे जो स्टोरेज कनेक्ट होगा बैकएंड में, I am not physically responsible for it। केबलिंग वेबलिंग जो भी करनी है, आई डोंट वांट टू डू दैट, आई नीड ए VM ओनली, मुझे सिर्फ VM चाहिए वेयर आई कैन रन माई सर्विस, जहां पे मैं अपना सर्वर चलाऊंगा, that is called infrastructure as a service। So if the company is asking for the IT infrastructure on rent, अगर वो सिर्फ इंफ्रा मांग रही है, इंफ्रा मीन्स they don't want to manage the networking, जो physical networking होती है like cabling, routing, switching, they don't want to do that। they don't want to take care of the storage, physical storage उनको manage नहीं करना, they just want to use it। they don't want to manage any physical server, वो जो सर्वर होते हैं, रैक सर्वर, टावर सर्वर, ब्लेड सर्वर, they don't want to manage that। they will simply install the OS, कंपनी वाले, HCL वाले, they will just install the OS, उनको हमें सर्वर बना के देना है। they need the server from the Azure, उस पे OS इंस्टॉल करेंगे वो लोग, then they will run the middleware and runtime, and if any application has to run, they will run it। that is infrastructure as a service। So in the infrastructure as a service, the cloud service provider only provides the infrastructure on rent, वो आपको एक इंफ्रा दे देंगे, हमें स्टोरेज चाहिए तो वो आपको स्टोरेज रेंट पे दे देंगे। you need virtual machine, they will give you the virtual machine on rent। so you will not be responsible for any underlying physical hardware maintenance, किसी भी हार्डवेयर मेंटेनेंस के लिए आप एज एन HCL you will not be responsible for it, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हु, द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, माइक्रोसॉफ्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यू आर जस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्टॉलिंग द OS, आप उनके सर्वर पे OS इंस्टॉल करो, बाकी के कंपोनेंट्स को रन करो एंड अपनी सर्विस को चला लो, अपनी एप्लीकेशन या अपना DHCP, DNS जो भी रन करना है, यू कैन रन इट। दैट इज कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो इसमें वो आपको बस इंफ्रास्ट्रक्चर रेंट पे देते हैं। द सेकेंड कैटेगरी इज PaaS, which is called platform as a service। platform as a service का मतलब क्या हो गया? Let me give you one example here। Let's say, मान लो for example, I want to run one of the website, मुझे जो है ना सर्वर चाहिए because I want to run the website, मुझे एक वेबसाइट चलानी है for online shopping, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। मान लो मैं कंपनी हूँ, I am HCL and my requirement is that I want to run one of the online shopping website, so for that I need a server, उसके लिए मुझे सर्वर चाहिए। अब देखो ट्रेडिशनल सेटअप क्या होगा, यू फर्स्ट नीड टू क्रिएट ए सर्वर, सबसे पहले तो आपके पास एक सर्वर होना चाहिए, एक सर्वर होना चाहिए। इफ इट इज ऑन प्रेम देन यू विल परचेज ए फिजिकल सर्वर, इफ इट इज ऑन द क्लाउड देन यू विल क्रिएट ए VM। लेट्स से आई एम यूजिंग Azure, सो ऑन Azure आई विल क्रिएट ए VM, मैं एक VM बनाऊंगा विच इज माई सर्वर। ऑन दिस VM आई नीड टू इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब वेबसाइट चलाने के लिए आइदर आई कैन यूज Linux, या तो मैं Linux के ऊपर सर्वर बना लूंगा, और आई कैन रन इट ऑन द विंडोज, या तो मैं विंडोज के ऊपर बना लूँ, दैट्स माई चॉइस। लेट्स सपोज आई एम यूजिंग विंडोज, सो आई विल इंस्टॉल द विंडोज OS, विंडोज सर्वर इंस्टॉल करूंगा मैं। प्लस इसके बाद आफ्टर द विंडोज सर्वर आई नीड टू डू द कनेक्टिविटी, सो मुझे नेटवर्किंग करके देनी पड़ेगी। हाउ विल आई कम्युनिकेट? सो आई नीड टू डू द नेटवर्किंग। आफ्टर द नेटवर्किंग, अभी तो वेबसाइट चलानी है ना, दैट इज अवर एंड गोल। फॉर रनिंग द वेबसाइट आई नीड टू इंस्टॉल ए सर्विस इन द विंडो विच इज कॉल्ड IIS, एक सर्विस होती है IIS, ये पढ़ाऊंगा मैं आपको इन फ्यूचर, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। सो दिस सर्विस इज यूज्ड टू क्रिएट ए वेब सर्वर।
इस सर्विस के थ्रू वेब सर्वर बनाया जाता है, एंड ऑन द वेब सर्वर वी रन द वेबसाइट। जो भी आप वेबसाइट चलाते हो कंपनी की, या जो भी आप एप्लीकेशन चलाते हो, वी एक्चुअली रन इट ऑन द वेब सर्वर। सो वेब सर्वर बनाने के लिए क्या चाहिए हमें? IIS। IIS कहाँ मिलेगा? इन द विंडोज सर्वर। मतलब हमें क्या क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू क्रिएट ए VM इन द क्लाउड फर्स्ट, वी नीड टू इंस्टॉल द OS विंडोज सर्वर, we need to do the networking, then we need to install the IIS role. After the IIS, now I can host my website. अब जाके मैं अपनी वेबसाइट को चला सकता हूँ। This setup is called IaaS, Infrastructure as a Service। यहाँ पे जो ये VM है, ये VM कहीं ना कहीं माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर में चल रहा है, तो ये फिजिकल होगा। हमें तो वर्चुअली मिल रहा है, वी आर यूजिंग इट ऑन द क्लाउड पोर्टल, बट एक्चुअल में इट इज इन द माइक्रोसॉफ्ट फिजिकल डेटा सेंटर, तो इसका हार्डवेयर होगा बैकएंड में। सो हु इज मैनेजिंग दैट? माइक्रोसॉफ्ट इज मैनेजिंग इट। हम तो बस उनका वर्चुअल सर्वर यूज कर रहे हैं ना, बट इन द बैकएंड इट इज अ फिजिकल रियल सर्वर। ये एक रियल का सर्वर होगा, एंड माइक्रोसॉफ्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मेंटेनेंस। OS हम इंस्टॉल करके हम मैनेज कर रहे हैं, नेटवर्किंग हम मैनेज कर रहे हैं, IIS की इंस्टॉलेशन भी हम कर रहे हैं, देन वी वुड बी एबल टू रन द वेबसाइट। इतना कुछ करने के बाद तब जाके मेरी वेबसाइट चलेगी। इफ देयर इज एनी इशू इन दिस सर्विस, अगर इस सर्विस पे कोई इशू आ गई, कौन ट्रबल शूट करेगा? कंपनी। HCL यूज कर रही है तो HCL ट्रबल शूट करेगी, देयर इंजीनियर विल ट्रबल शूट। क्योंकि सर्विस पे इशू आ गया, देन वेबसाइट विल नॉट फंक्शन, ऑनलाइन शॉपिंग साइट बंद हो जाएगी ना। अगर नेटवर्क में कोई इशू आ गया, हु विल टेक केयर ऑफ इट? कंपनी करेगी, कंपनी का नेटवर्क है ना, दे आर डूइंग द कनेक्टिविटी। अगर OS करप्ट हो गया, OS में सर्वर पे कुछ क्रैशिंग आ गई, हु विल डू इट? कंपनी करेगी, HCL का है ना। बट अगर इस VM के हार्डवेयर में कोई इशू आ गया, या कुछ अपग्रेड करना है, बायोस फिक्सिंग करनी है, हु विल डू दैट? माइक्रोसॉफ्ट करेगी, क्योंकि उनका रेंट पे ले रखा है ना मैंने। दिस इज IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। अब नाउ इफ आई डोंट वांट टू बॉदर अबाउट ऑल दिस थिंग्स, मुझे इतनी चीजों की टेंशन लेनी ही नहीं है, आई डोंट वांट टू टेक द टेंशन ऑफ दिस। मैं क्यों लूं टेंशन? I want to run my online shopping site. Why should I worry about the VM? Why should I worry about the networking? Why should I worry about the OS installation? Why should I worry about IIS? मेरे को मेरा मेन गोल क्या है? I want to run my online shopping website. ये मेरा मेन टारगेट है। अब इतना करने के लिए, in order to run this, मैं इतनी सारी चीजें करूं? नहीं करूंगा। I will not do that. I don't want to focus on this. मैं क्यों करूं? If you don't want to focus on these things, go to the Microsoft, go to the cloud service provider, tell them that I need a PaaS. मुझे platform as a service चाहिए। I need PaaS. PaaS means they will now give you ready-made server with all these functionalities. इन सब चीजों के साथ आपको रेडीमेड एक ऑप्शन दे देगा कि भाई ये लो आपका IIS रेडीमेड है, हियर यू कैन रन योर ऑनलाइन शॉपिंग साइट। सीधा अपनी साइट चलाओ ना। We will take care of all these things. हम सबका ध्यान रखेंगे। VM you don't have to manage, networking you don't have to manage, OS installation you don't have to worry, IIS installation you don't have to worry. We will give you ready-made console. हम आपको बना बनाया एक सर्वर लाके दे देंगे। You just run your website and enjoy your life. यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होती है, that is not your company responsibility. HCL की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। किसकी है? माइक्रोसॉफ्ट की, बिकॉज वी आर पेइंग फॉर द प्लेटफॉर्म। हम पूरे प्लेटफॉर्म का पैसा दे रहे हैं। बट साइट में कुछ इश्यू हो गया, इफ माई साइट हैज सम इश्यू, इफ इट इज डाउन, ये यहां तक सब कुछ ठीक है, बट इफ माई साइट हैज एनी इश्यू, देन HCL इज रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि HCL की साइट है वो। बट इफ एनी इश्यू कम्स ऑन द प्लेटफॉर्म, IIS लेवल तक अगर कोई इश्यू आ गया, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, दैट इज PaaS. दैट इज वाई द PaaS इज एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू द IaaS, क्योंकि PaaS में आपको पूरा बना बनाया प्लेटफॉर्म देता है। IaaS में कहां तक देगा? IaaS में बस दे विल जस्ट गिव यू द VM, आपको सिर्फ सर्वर दे देगा। मतलब ये हार्डवेयर वाला पोर्शन आपका खत्म कर देगा। नेटवर्क कनेक्टिविटी वगैरह यू विल टेक केयर ऑफ इट, OS इंस्टॉलेशन यू विल टेक केयर ऑफ इट, IIS यू विल इंस्टॉल, वेबसाइट यू विल रन, दैट इज योर IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। PaaS में क्या करेगा? वो ये चीजें भी आपको दे देगा कि पूरा प्लेटफॉर्म ही ले ले भाई तू, और इसके ऊपर अपनी वेबसाइट चला ले। वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, तुझे टेंशन ही नहीं लेनी। दैट इज PaaS।
सो देर आर सम सर्विसेज विच कम्स अंडर द PaaS. बहुत सारी ऐसी सर्विस है जहाँ पे आपको बनी बनाई चीजें भी मिल सकती है, जस्ट लाइक द डेटाबेसिस. बहुत सारे डेटाबेसेस एज्योर में या किसी भी क्लाउड में आपको मिलेंगे विच कम्स अंडर द PaaS. लाइक SQL का नाम सुना होगा आप लोगों ने. सो SQL इज वन ऑफ द डेटाबेस इंजन जिससे डेटाबेस मैनेज करती है कंपनी. इफ आई वांट टू यूज SQL, मान लो मुझे SQL सर्वर चाहिए फॉर मैनेजिंग माई डेटा, मेरे डेटा को मैनेज करने के लिए. व्हाट आई विल डू, क्या सेटअप होता है SQL का? आई नीड ए सर्वर, एक सर्वर लेके आऊंगा मैं. ऑन टॉप ऑफ इट आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम, इस पे मैं डालूंगा विंडो. ऑन टॉप ऑफ दैट नाउ आई विल डू द नेटवर्किंग, फिर मैं करूंगा नेटवर्किंग. ऑन टॉप ऑफ दैट नाउ आई विल इंस्टॉल द SQL, उसके ऊपर मुझे SQL का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा. देन आई कैन यूज इट. दिस इज IaaS, जहाँ पे VM उन्होंने मेरे को दे दिया है बट बाकी की चीजें मैं मैनेज कर रहा हूँ. बट मेरे को IaaS नहीं चाहिए. आई डोंट वांट टू टेक द हेडेक ऑफ ऑल दिस थिंग. मुझे तो SQL चाहिए, रेडीमेड SQL. आई विल जस्ट रन माई डेटा, मैं अपना डेटा जाके रन करूंगा, वहां पे डेटा सेव करूंगा. सो यू कैन गो फॉर द PaaS सर्विस. सीधा जाके बोल दो SQL PaaS में चाहिए, दे विल गिव यू द रेडीमेड SQL, बना बनाया SQL दे देंगे. उसके ऊपर अपना डेटा रख लो, मैनेज करो, दैट्स इट. यस राहुल. यस सर. सर अगर वो नेटवर्क सपोर्ट दे रहे हैं तो फिजिकली आके एक्चुअल कंपनी में देंगे कि वहाँ उनके एंड से ही करेंगे सर नेटवर्क नहीं, को या? वो फिजिकल सपोर्ट नहीं देगा. जो हाँ. पोर्टल के ऊपर जो भी आप कनेक्टिविटी कर रहे हो वो नेटवर्क सपोर्ट है. जो बैकएंड में जो माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर में जो राउटर स्विचेस रखे हुए हैं वो तो वो वहीं से मैनेज कर लेंगे ना. उसके लिए उनको आपकी कंपनी में आने की जरूरत थोड़ी है. अच्छा. आप तो उनका नेटवर्क यूज कर रहे हो ना, हाँ सर. समझ गए? हाँ तो वो सर. आपके ऑफिस में नहीं आएंगे. अच्छा. So this is the PaaS service. So in the PaaS service they provides you the infrastructure on rent. मतलब वहाँ पे नेटवर्किंग के लिए भी वही रिस्पॉन्सिबल है, स्टोरेज दे आर रिस्पॉन्सिबल, फॉर सर्वर ऑल्सो दे आर रिस्पॉन्सिबल, फॉर OS एंड मिडलवेयर दे आर रिस्पॉन्सिबल. अब मिडलवेयर क्या होता है देखो, मैं एक देसी लैंग्वेज में समझाता हूँ. मिडलवेयर का मतलब ये हो गया, अगर मान लो आई वॉन्ट टू यूज SQL, मुझे SQL का सर्वर चाहिए, डेटाबेस जिस पे मैं अपना डेटा रख के उसको मैनेज करूँ, राइट? सो ये जो SQL है, इस SQL को इंस्टॉल करना पड़ता है. आई नीड टू इंस्टॉल दिस SQL. कहाँ इंस्टॉल करूंगा? सर्वर के ऊपर इंस्टॉल करूंगा. सो दिस इज माई मिडलवेयर. इसको आप जनरली एक मिडलवेयर बोल देते हो कि ये SQL मेरा मिडलवेयर है. समझ गए? सो मिडलवेयर तक का जो प्लेटफॉर्म होगा दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय द क्लाउड कंपनी, अगर आप PaaS पे जाते हो तो. सो PaaS जो है IaaS का एडवांस लेवल है. सो इफ यू गो विद द PaaS दे विल गिव यू द सर्विस अप टू द मिडलवेयर. मतलब आपको SQL चाहिए तो वो SQL बना बनाया आपको दे देगा. इफ यू नीड IaaS दे विल प्रोवाइड यू रेडीमेड IaaS, बना बनाया दे देगा. एक और ऑप्शन समझा देता हूँ. ऑल ऑफ यू नो अबाउट द एक्टिव डायरेक्टरी. एक्टिव डायरेक्टरी सुना है आप लोगों ने सबने? एक्टिव डायरेक्टरी जो है यू नीड टू इंस्टॉल इट. इसको यूज करने के लिए इंस्टॉल करना पड़ता है ना. यू नीड वन सर्वर, आपको एक सर्वर चाहिए. देन यू इंस्टॉल द विंडोज सर्वर, इसके ऊपर विंडोज सर्वर इंस्टॉल करते हो. देन यू इंस्टॉल द एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस, तब जाके ADDS इंस्टॉल होता है. देन यू आर एबल टू यूज इट, तब जाके आप यूज करते हो. दिस इज IaaS सर्विस, जहाँ पे आप उनका VM यूज कर रहे हो. बट एक्टिव डायरेक्टरी अगर आपको बना बनाया चाहिए, आई डोंट वांट टू क्रिएट दिस, मेरे को ये OS इंस्टॉल करना, ADDS इंस्टॉल करना, आई डोंट वांट टू डू दैट. मुझे रेडीमेड ADDS का सर्वर चाहिए. आई नीड ए पोर्टल, आई नीड ए कंसोल, दैट इज PaaS. तो आपको वो बना बनाया एक्टिव डायरेक्टरी दे देगा विच इज कॉल्ड एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी. जैसे यहाँ पे इन एज्योर पोर्टल देयर इज अ रेडीमेड एक्टिव डायरेक्टरी कंसोल, बाद में दिखाऊंगा अभी तो आपको. दैट इज कॉल्ड एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, जो हम पढ़ेंगे. वी हैव द टॉपिक ऑफ दिस ऑल्सो. सो एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी इज वन ऑफ द प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, जहाँ पे आपको AD इंस्टॉल नहीं करना पड़ता. द AD इज बाय डिफॉल्ट अवेलेबल फॉर यू. आपको सीधा AD दे देंगे, यू जस्ट यूज दैट AD, use it and create your services. That is PaaS. So there are a lot of PaaS services available in Azure Cloud. Azure Cloud में बहुत सारी PaaS service available है that we can use and we can focus on our main service. Just like I will give you some examples also in future. Azure Active Directory is a PaaS service. Storage account is a PaaS service. Then there is a topic Azure Bastion. Azure Bastion is a PaaS service.
So these things we will discuss practically. ये सब आगे practically दिखाऊंगा आपको मैं. SQL in Azure is one of the PaaS service. ये सब PaaS है जहाँ पे बना बनाया आपको environment मिल जाएगा and you will just run your service. Third option is I don't want to manage anything. मुझे कुछ manage करना ही नहीं है. I don't want to manage any infrastructure. I don't want to manage any platform. मुझे तो application भी नहीं manage करनी. I want to use one application. Please provide me. मेरी कंपनी में मुझे एक सॉफ्टवेयर यूज करना है. प्लीज प्रोवाइड मी. मुझे टेंशन नहीं चाहिए कि क्या चलाऊं कैसे चलाऊं. आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी आईटी इंफ्रा. आई विल जस्ट गो टू द क्लाउड प्रोवाइडर. आई विल से आई नीड द एप्लीकेशन. प्लीज गिव मी. मुझे दो. एंड आई विल पे यू द रेंट एवरी मंथ. हर महीने रेंट दे दूंगा. अगर उस एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम होती है, आई डोंट वांट टू ट्रबल शूट एनीथिंग. भाई तुम्हारा काम है. आई विल पे यू. That is software as a service. So in the software as a service, we don't manage anything. Company कुछ भी मैनेज नहीं करती. Everything will be managed by the service provider. जिससे आप सॉफ्टवेयर ले रहे हो सब कुछ वही मैनेज करके देगा. One example of this SaaS service is Office 365, जो आप सब लोगों ने सुना होगा. सबने सुना होगा Office 365. In every company this is used. Office 365 में बहुत सारी चीजें आती है. Microsoft Teams is the part of Office 365. Your SharePoint is the part of Office 365. Your Office, your Excel, your PowerPoint, nowadays this is the part of Office 365. तो ये पूरी की पूरी जो सर्विस है ना, this is a SaaS service. क्या Office 365 यूज करने के लिए do I need to create a server? इसके लिए क्या मुझे सर्वर बनाना पड़ता है? No. मैं सीधा सब्सक्रिप्शन ले लेता हूँ. अकाउंट ले लिया जाता है कंपनी में. दे डायरेक्टली परचेज द सब्सक्रिप्शन. जैसे आप नेटफ्लिक्स परचेज करते हो ना, नेटफ्लिक्स यूज करने के लिए क्या मुझे नेटफ्लिक्स बनाना पड़ता है? नो. आई विल जस्ट टेक द सब्सक्रिप्शन. सिमिलरली इफ यू वांट टू यूज द ऑफिस 365, तो आप लोग क्या करते हो? ऑफिस 365 का एक सब्सक्रिप्शन ले लिया जाता है कंपनी में. यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाता है. फिर इस पे एक एडमिन बिठा दिया जाता है. एंड दैट पर्सन इज कॉल्ड ऑफिस 365 एडमिन. वो बंदे क्या करते हैं? वो बैठ के यूजर्स बनाते हैं, इसके ऊपर ग्रुप्स बनाते हैं, परमिशन लगा देते हैं, आपकी आईडी वाईडी बना देते हैं. एंड दे विल गिव यू. इसके लिए कोई सर्वर थोड़ी बनाया कंपनी ने. रेडीमेड पोर्टल ले लिया. दैट इज सैस. जिनसे लिया सब कुछ वही मैनेज कर रहे हैं. दे आर मैनेजिंग एवरीथिंग. कंपनी खुद थोड़ी ना कुछ मैनेज कर रही है. ना इसका सर्वर कंपनी मैनेज कर रही है, ना नेटवर्क मैनेज कर रही है, ना अपग्रेड मैनेज कर रही है. बस वो क्या मैनेज कर रही है? यूजर्स. ऑफिस 365 के यूजर्स, ऑफिस 365 के ग्रुप्स, ऑफिस 365 पे चलने वाले सिक्योरिटी और परमिशंस जो आप चाहते हो कंपनी के लिए, दैट यू आर मैनेजिंग. बाकी बैकएंड में पूरा ऑफिस 365 का जो सर्वर बना हुआ है, दैट इज मैनेज बाय द सर्विस प्रोवाइडर. किसका है ऑफिस 365? माइक्रोसॉफ्ट. माइक्रोसॉफ्ट से लेते हो आप. और एग्जांपल दे देता हूँ. योर टिकटिंग पोर्टल. हमारे जो कंपनी में टिकटिंग पोर्टल्स चलते हैं, एवरी कंपनी हैव देयर ओन टिकटिंग पोर्टल लाइक बीएमसी रेमेडी, सर्विस नाउ, ज़ेंडेक्स. ऐसे ऐसे पोर्टल्स चलते हैं ना. कभी इनसे पूछना बैकएंड वालों से कि इन पोर्टल को चलाने के लिए कोई सर्वर चल रहा है क्या कंपनी में? नहीं होता. हम क्या करते हैं? हाउ डू वी एक्सेस द टिकटिंग पोर्टल? कुछ की कंपनी में तो ऐसा होगा कि एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रही होगी लैपटॉप में एंड वी ओपन इट. वो तो फिर ऑन प्रेम हो गया. बट बहुत से लोगों का 90% लोग कैसे एक्सेस करते हैं? थ्रू द ब्राउजर. आपका जो भी टिकटिंग पोर्टल है, ज़ेंडेस्क, सर्विस नाउ, बीएमसी रेमेडी, यू हैव ए यूआरएल. यू क्लिक ऑन द यूआरएल. फिर आप जाके उसको यूजर आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेते हो. उसका कोई सर्वर है आपकी कंपनी में? नो. दैट इज सैस सर्विस. सीधा कंपनी गई आपकी, लेट्स से आपकी कंपनी में चल रहा है मान लो बीएमसी रेमेडी. दे विल कॉन्टेक्ट टू द बीएमसी रेमेडी कंपनी कि भाई ऐसा है ना, हमें टिकटिंग पोर्टल चाहिए आपसे. हमारी इतनी इतनी टिकट आती है, सो वी नीड दिस काइंड ऑफ प्लान. वो आपको टिकटिंग पोर्टल दे देंगे, उसके बदले आपसे रेंट लेंगे. दे विल चार्ज यू पर मंथ या पर ईयर, उस हिसाब से चार्जेस बनते हैं. दैट इज सैस सर्विस. अब बीएमसी रेमेडी डाउन होता है, दैट इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. आप उनको टिकट रेस करोगे बीएमसी को, भाई योर बीएमसी रेमेडी इज डाउन. दे विल फिक्स इट. हम क्यों करें? हम तो पैसे दे रहे हैं ना. दैट इज सैस. ऑफिस 365 डाउन हो जाता है, दैट इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैं तो माइक्रोसॉफ्ट को पैसा दे रहा हूँ. आई विल रेज ए टिकट टू द माइक्रोसॉफ्ट कि भाई डाउन हो गया, मेरे यूजर लॉग इन नहीं कर पा रहे, माई ईमेल इज नॉट वर्किंग.
वो फिक्स करेगा। बहुत सी कंपनी में अटेंडेंस पोर्टल्स होते हैं, एलएमएस बने होते हैं। अब ये जो एलएमएस है, मान लो इविजन के पास एक एलएमएस है जहाँ पे कोर्सेज की वीडियो पड़ी हुई है, वो एलएमएस डाउन होता है, दैट इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने तो कोर्स परचेज किया है ना। आपको अगर आपका कोर्स चलता हुआ नहीं मिलेगा, यू विल रेज ए टिकट टू द इविजन, फिर इविजन उसको चेक करेगी, दे विल फिक्स इट। दैट इज सैस सर्विस। जीमेल क्या है आपका? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। जीमेल यूज करने के लिए क्या आपने अपने लैपटॉप में जीमेल की एप्लीकेशन इंस्टॉल करी है? हैव यू सेट अप द जीमेल सर्वर? नहीं किया ना। सीधा ब्राउजर पे जाता हूँ, आई एंटर माई यूजर आईडी एंड पासवर्ड एंड आई एम एबल टू यूज द जीमेल। यूट्यूब, फेसबुक, इनको यूज करने के लिए क्या आप पूरा इन्वायरमेंट बनाते हो? You go to your mobile phone, you go to your computer laptop, you just enter the user ID and password and you are able to access the page. This is SaaS. ये सब SaaS है। SaaS का बहुत बड़ा बिजनेस है मार्केट में। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस इज द बिगेस्ट बिजनेस ऑन द क्लाउड इंडस्ट्री। जितनी भी आजकल एप्लीकेशन है, ये जो नेटफ्लिक्स और डिज्नी हॉटस्टार, Amazon प्राइम, ये सब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो ना, यू एंटर द यूजर आईडी पासवर्ड एंड यू आर एबल टू यूज इट। क्या है ये? SaaS, SaaS एप्लीकेशन। और इसके पीछे एक और कहानी है, इट रन्स ऑन द क्यूबरनेटीज। क्यूबरनेटी के ऊपर चलता है। क्यूबरनेटी आगे बात करेंगे हम डेवऑप्स के टाइम पे। क्यूबरनेटीज पे चलती है ये सारी चीजें। दिस इज द बिग गेम। सो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस is a kind of setup where we are getting everything. Everything means our application, our final application through the service provider. And our company, it is not responsible for managing a single piece of thing. हमारा काम है उस एप्लीकेशन पे काम करो, अपना बिजनेस निपटाओ, दैट्स इट। दैट इज सैस सर्विस। और जो सैस की सर्विस होती है ना, यू कैन नॉट आस्क फॉर एवरी सैस सर्विस फ्रॉम द Amazon कंपनी और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी और गूगल। ऐसा नहीं है कि आप जाके एज्योर को बोलोगे कि मेरे को हर चीज की सैस दे दो। नो, सैस के लिए अलग अलग वेंडर्स होते हैं। सैस के वेंडर्स होते हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट ओनली टेक्स केयर ऑफ ऑफिस 365। माइक्रोसॉफ्ट सिर्फ आपको ऑफिस 365 दे सकता है। बट इफ यू विल आस्क देम अबाउट द टिकटिंग पोर्टल, दे विल नॉट गिव यू। आपको टिकटिंग पोर्टल के लिए सर्विस प्रोवाइडर के पास जाना पड़ेगा। इफ यू वांट टू यूज द बीएमसी रेमेडी, यू विल गो विद द बीएमसी रेमेडी सर्विस प्रोवाइडर। दे विल गिव यू द SaaS एक्सेस ऑफ देयर पोर्टल ऑन रेंट। तो ये एज्योर वाले नहीं देंगे, ये AWS वाले नहीं देंगे आपको। Azure, AWS and GCP, they provide you IaaS and PaaS service। ये याद रखना, जो क्लाउड हम पढ़ रहे हैं ना, they will give you IaaS and PaaS service। सारे सॉफ्टवेयर वो नहीं देते। फॉर द सॉफ्टवेयर यू नीड टू गो टू द सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर। वो सिर्फ क्लाउड इज एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्लेटफॉर्म। क्लाउड इज ऑल अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्लेटफॉर्म। अगर मैं सॉफ्टवेयर यूज कर लूंगा, SaaS ही सर्विस यूज करने लग जाऊंगा हर जगह पे, देन व्हाट इज माय नीड? भाई HCL में अगर आप सारी चीजें SaaS पे यूज करने लग जाओगे तो एडमिन की जरूरत क्या है? फिर तो जिससे मैंने सॉफ्टवेयर लिया है, दैट कंपनी विल हायर द एडमिन और उनके एडमिन इस पे सपोर्ट करेंगे। मेरी कंपनी का क्या रोल रह गया? तो डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट, कंपनी कीप्स द सर्विसेज ऑफ द SaaS। ऑफिस 365 चाहिए तब वो लेंगे। ऐसा नहीं है हर चीज SaaS पे ली जाती है, और ऐसा भी नहीं है कि हर चीज SaaS के लिए अवेलेबल होती है। टिकटिंग पोर्टल्स अवेलेबल है, आपका ऑफिस 365 अवेलेबल है, बट हो सकता है आपको जो चाहिए वो चीज मार्केट में नहीं है SaaS, सो यू कैन नॉट यूज इट। आपकी मर्जी नहीं चलेगी। अगर आपको लगता है कि मैं DHCP चलाऊंगा SaaS पे, मुझे DHCP चाहिए बना बनाया, नहीं है मार्केट में, यू कैन नॉट यूज इट। SaaS थोड़ी है उसका, SaaS तो सिर्फ सॉफ्टवेयर का होता है। तो SaaS आर अवेलेबल इन द मार्केट, बट नॉट एवरी कंपनी टोटली फोकस ऑन द SaaS, क्योंकि ये तो बहुत ही एक्सपेंसिव है और सारा कंट्रोल ही आप सर्विस प्रोवाइडर को दे दोगे। व्हाट विल बी इन योर हैंड? वेयर इज द सिक्योरिटी, वेयर इज द कंप्लायंस, वेयर इज द लीगैलिटीज? तो SaaS क्लाउड वाले मैनेज नहीं करते। SaaS में तो आप कुछ मैनेज करते ही नहीं हो, सर्विस प्रोवाइडर सब कुछ मैनेज कर देगा। देन व्हाट इज योर नीड? आप किस बात के एडमिन हो? सो व्हेन यू विल बी हायर्ड इन द कंपनी, यू विल नॉट बी हायर्ड टू मैनेज द SaaS। SaaS मैनेज करना आपका काम नहीं है। अगर ऑफिस 365 कंपनी यूज कर रही है, सो देयर विल बी सेपरेट टीम ऑफ ऑफिस 365। दे विल टेक केयर ऑफ द SaaS पार्ट, द ऑफिस 365 पार्ट। एक्सचेंज सर्वर होता है उसके अंदर, दे विल टेक केयर ऑफ द एक्सचेंज सर्वर, एक्सचेंज ऑनलाइन। so these things they will take care of। हम, we guys are the cloud admin,
वी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द IaaS एंड PaaS सर्विस इन द कंपनी। हमें कंपनी हायर करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लेटफॉर्म को मैनेज करने के लिए। वी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर IaaS एंड PaaS ओनली। ये हमारा काम नहीं है, ये क्लाउड एडमिन मैनेज नहीं करता। इसमें मैनेज करने के लिए है ही क्या? सो वी विल मैनेज दीज टू एस्पेक्ट्स। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ क्रिएट करके देना है, इफ वी हैव टू क्रिएट ए सर्वर, वी विल क्रिएट दैट। If any networking has to be done, we will do that. If any security has to be applied, we will do that. If any platform has to be created, let's say SQL Server installation, SQL Server creation, deployment, security, that we will manage. If there is any issue in these two aspects, we will manage. Server nahi chal raha, that is our responsibility. Server connectivity got failed, that is our responsibility. The load balancer is not properly working, my server has a lot of load, that is my responsibility. To take the backup of all the servers, that is my responsibility. If any site is down on the server, that is my responsibility in the company. If my service, let's say DNS is down, DHCP is down, application is down, this is my responsibility. ये सब हमारा काम है. We will manage these two parts. So as a cloud admin, we are responsible for managing the infrastructure as a service and platform as a service. So the complete cloud course, चाहे आप कोई भी cloud पकड़ लो, AWS, Azure, GCP, these all cloud only talks about IaaS and PaaS. तो आपको प्रैक्टिकली ये दो सर्विस पढ़ाई जाती है, IaaS and PaaS. SaaS में तो कुछ करना ही नहीं है ना, सर्विस प्रोवाइडर पे जाओ, बना बनाया अकाउंट, यूजर आईडी पासवर्ड दे देगा एंड यू विल यूज इट, जैसे नेटफ्लिक्स में करते हो. सो ये दो चीजें आप मैनेज करोगे कंपनी में. दिस विल बी योर जॉब. एंड इफ आई टॉक अबाउट द रेशियो, अगर मैं रेशियो की बात करूं, विच सर्विस इज यूज्ड अ लॉट, इफ आई कंपेयर द IaaS एंड PaaS, सबसे ज्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा कंपनी में? इट विल बी IaaS. क्योंकि कंपनी कॉस्ट कटिंग करना चाहती है तो वो प्लेटफॉर्म पे जाके ज्यादा कॉस्ट थोड़ी ना बढ़ाएगी. अगर आप सारी चीजों का पैस ले लोगे देन यू हैव टू पे मोर, क्योंकि सब कुछ तो आपका क्लाउड वाला मैनेज करेगा. सो यू हैव टू पे मोर टू देम. फिर सिक्योरिटी भी आपके कंट्रोल में नहीं है यहाँ पे तो. सो कंपनी मोस्टली यूज द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन रेंट. जब वो क्लाउड की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को रेंट पे यूज करते हैं, ताकि सिक्योरिटी हमारे कंट्रोल में रहे, कंप्लायंस हमारे कंट्रोल में रहे, ओएस हमारे कंट्रोल में रहना चाहिए, सर्विस शुड बी इन अवर कंट्रोल. सो IaaS को ज्यादा यूज किया जाता है, प्लस दिस इज लेस कॉस्टलियर एज कंपेयर टू द PaaS एंड SaaS. PaaS और SaaS ज्यादा महंगे हैं. सो रेशियो की बात करूं, out of 100%, so 80% of the infra will be on IaaS, 20% will be on PaaS. और हर चीज PaaS पे नहीं जा सकती, इस चीज का भी ध्यान रखना. देयर आर सम सर्विसेज दैट कैन ओनली रन ऑन द PaaS. ऐसा नहीं है आपकी मर्जी से आप चाहोगे DNS भी PaaS पे चला दूंगा. नो, DNS नहीं है तो नहीं है. SQL is there, you can use SQL. Azure Bastion is there, you can use it. Azure Storage Account is there, you can use it. Azure Active Directory is there, you can use it. तो जो सर्विस उन्होंने दी है, which is available through them, only you can use it. जो सर्विस क्लाउड वाले ऑफर नहीं करते, that is not part of PaaS. जो उनके पास है देने को, they can only provide it to you as a PaaS. इंफ्रास्ट्रक्चर में दे कैन ऑफर एवरीथिंग, क्योंकि आप उनका डेटा सेंटर यूज कर रहे हो रेंट पे, नेटवर्क यूज कर लो, उनका सर्वर यूज कर लो, स्टोरेज यूज कर लो, लोड बैलेंसर यूज कर लो, फायरवॉल यूज कर लो, एनीथिंग दैट यू वांट यूज इट. तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो पूरा पूरा दे देंगे, बट PaaS सर्विस हर चीज के लिए अवेलेबल नहीं होती. देयर आर सम सर्विस विच कैन बी प्रोवाइडेड एज ए PaaS. तो सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा आपको क्लाउड पे फ्रॉम द कॉस्ट परस्पेक्टिव. तो सबसे ज्यादा टिकट भी इंफ्रास्ट्रक्चर की आएगी आपको कंपनी में. इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दो, इंफ्रास्ट्रक्चर में इशू आ रहा है. एंड व्हेन आई से इंफ्रास्ट्रक्चर, इट मींस एवरीथिंग. उसमें नेटवर्क भी आता है क्लाउड का, उसमें क्लाउड के सर्वर्स भी आते हैं, क्लाउड स्टोरेज इज ऑल्सो देयर, लोड बैलेंसर्स, क्लाउड सिक्योरिटी अप्लायंस लाइक फायरवॉल, ये सब चीजें भी उसी के अंदर आती है. सो इट्स कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर. सो इन अवर कोर्स वी विल बी फोकसिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्लेटफॉर्म. ये दो चीजें हम पढ़ेंगे. और आप चाहे कोई भी कोर्स करो, किसी भी क्लाउड को करो, ये दो चीजें ही पढ़ाई जाती है. SaaS एक टाइप है, बट SaaS आपके AWS, Azure या GCP क्लाउड का पार्ट नहीं है. SaaS तो अलग से सर्विस प्रोवाइडर हो गए, जिनसे आप सर्विस लोगे. टिकटिंग पोर्टल ले लिया किसी से Office 365 ले लिया, so that is SaaS. So we don't manage the SaaS in the company, we manage the IaaS and PaaS only. ऑन प्रीमाइसिस मैनेज करने के लिए देयर इज अ सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटर टीम. जैसे नेटवर्क मैनेज करने के लिए देयर विल बी नेटवर्क इंजीनियर्स. फॉर द सर्वर्स देयर विल बी सर्वर एडमिन्स.
For the virtualization there will be virtualization admin. For the databases there will be DBA. DBA की टीम होगी जो database manage करती है, DBA admins. For the security there will be security team. And in the cloud मोस्टली सारा काम क्लाउड वाले बंदे ही करते हैं. दैट इज वाई दे आर हेविली पेड. इसलिए उनको ज़्यादा पैसा मिलता है क्योंकि वो सब कुछ ही खुद ही देख रहे हैं. अब अलग से नेटवर्क का बंदा नहीं चाहिए, डेटाबेस का बंदा नहीं चाहिए ऑन प्रेम की तरह. नेटवर्क इज ऑल्सो मैनेज बाय द क्लाउड, स्टोरेज इज ऑल्सो मैनेज बाय द क्लाउड पर्सन, सर्वर इज ऑल्सो मैनेज बाय द क्लाउड पर्सन. तो इसलिए उनको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, खर्चा भी बचा रहे हैं, प्लस एक ही बंदा सब कुछ देखेगा तो मिलेंगे ही ना पैसे. सर That is- एक्चुअली जैसे नेटवर्क इंजीनियर से क्या काम रहता है क्लाउड में, क्योंकि नेटवर्क तो सर्विस प्रोवाइडर ही करते हैं ना, हमें प्रोवाइड. नेटवर्क वो पूरा मैनेज नहीं करते. नेटवर्क में वो सिर्फ आपको जो राउटर दे रहे हैं, जो आप उनका राउटर यूज़ कर रहे हो या उनका जो स्विच यूज़ कर रहे हो या उनके जो डिवाइस यूज़ कर रहे हो आप, लेट्स से फायरवॉल सिक्योरिटी के लिए, वो उन्होंने आपको दे दिया थ्रू द पोर्टल. अब राउटर उन्होंने दे दिया, अब नेटवर्किंग करना आपका काम है ना, आपके सर्वर है ना, आपने बनाया है ना सर्वर क्लाउड पे. क्या कनेक्टिविटी करानी है, कैसे करानी है, सिक्योर कैसे करोगे कनेक्टिविटी को, सो तो वो सब आपके क्लाउड एडमिन करेंगे ना कंपनी के. अगर आप HCL के क्लाउड एडमिन हो, सो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू द नेटवर्किंग अमंग ऑल योर इंफ्रास्ट्रक्चर. जितने भी आपके सर्वर्स है, जितने भी स्टोरेजेस चल रहे हैं, अगर आपको ऑन प्रेम से कनेक्टिविटी भी करनी है तो ये सब काम आपका एडमिन करेगा ना अब HCL का. मतलब सर जस्ट तो फिजिकल एक्सेस देते हैं. बस वो फिजिकल एक्सेस दे देंगे. अगर हाँ. फिजिकल कंपोनेंट में कोई इशू आ गया, माइक्रोसॉफ्ट का राउटर डाउन हो गया, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अब वो आपके ट्रैफिक को उठा के चाहे दूसरे फिजिकल राउटर पे माइग्रेट करे या फिर वो इसको फिक्स करे, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बट उन्होंने जो प्लेटफॉर्म आपको दिया है, उन्होंने आपको राउटर दिया, स्विच दिया, अब आपका काम है ना कनेक्टिविटी करना, क्योंकि नेटवर्क तो आपका है ना, वो आके आपके लिए नहीं करेंगे ना. फिर तो आपका कंट्रोल ही खत्म हो गया, फिर तो क्लाउड पे ट्रस्ट ही नहीं करेगा बंदा, सब कुछ ही अगर उनके हाथ में दे दिया तो वो क्लाउड वाले बंदे का काम है. अब बहुत बड़ी बड़ी कंपनी होती है जो, लेट्स से बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है जहाँ पे क्या करते हैं, जो नेटवर्क इंजीनियर होता है, जो ऑन प्रेम भी देख रहा होता है, वही नेटवर्क इंजीनियर क्लाउड भी जानता है. तो वो क्लाउड पे जितना भी नेटवर्किंग का काम करना होता है वो नेटवर्क इंजीनियर कर देता है. बट ऐसा हर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं मिलता. मोस्टली 90% ऑर्गेनाइजेशन में क्लाउड का जो एडमिन है वही बंदा क्लाउड पे नेटवर्किंग भी देख रहा होता है, क्योंकि क्लाउड पे जितनी भी चीजें चल रही है दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लाउड एडमिन. कुछ भी चल रहा हो चाहे क्लाउड पे. अब उसके लेवल्स होते हैं L1 L2 L3 इस तरीके से. तो लेवल्स के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि वो कितना काम देख पाएगा, कितना नहीं देख पाएगा. ऐसे करते करते L7 तक चले जाता है, L8 तक चले जाता है मैटर. तो लेवल 1 और लेवल 2 के बंदे तो डिप्लॉयमेंट्स देखते हैं, ट्रबल शूटिंग देखते हैं, सर्वर्स की, स्टोरेज की, लोड बैलेंसर्स, ये सब. L3 पे जो बंदे आ जाते हैं दे टेक्स केयर ऑफ माइक्रो सर्विसेज लाइक क्यूबरनेटीज देख रहे हैं वो, ऑर्केस्ट्रेशन, रेड हैट, ओपन शिफ्ट देख रहे हैं वो, सिक्योरिटी देख रहे हैं हाई लेवल की, ऐप सर्विसेज देख रहे हैं, कंटेनराइजेशन चेक कर रहे हैं. फिर L4 लेवल पे और L5 लेवल पे आके तो दे आर इनटू द माइग्रेशन, सिक्योरिटी कंसल्टिंग, बड़े बड़े लेवल पे आ जाते हैं. फिर वो स्क्रिप्ट लिखते हैं बैठ के, ऑटोमेशन कैसे करेंगे. फिर L6 पे, L5 L6 L7 दे आर द आर्किटेक्ट पीपल, प्लेटफॉर्म हेड, जो पूरा डिजाइन करेंगे कि ऑन प्रेम से क्लाउड पे आना है तो कैसे आएंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे पूरा पूरा. तो दिस इज हाउ द थिंग वर्क्स. तो लेवल के हिसाब से उनको काम मिलता है, उनका L कितना है, बट करते क्लाउड वाले ही है. क्लाउड पीपल आर डूइंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग, क्योंकि उसके लिए अलग से नेटवर्क का बंदा थोड़ी लाएंगे. क्लाउड पे है, इट मीन्स दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लाउड एडमिन. इस वजह से क्लाउड वाला बंदा जो है सब कुछ पढ़ता है. एंड दैट इज द डिमांड, हम लोग कुछ कह भी नहीं सकते. क्लाउड है तो है, क्लाउड पे ही चलाना पड़ेगा सब कुछ. नाउ टेल मी, डिड यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म एंड SaaS? ये सब समझ में आ गया कि नहीं आया? यस क्योंकि सर. एक्चुअली सर रन टाइम क्या है इसमें? रन टाइम मैं अभी समझाता हूँ. देखो, रन टाइम का मतलब ये हो गया, अभी बस मैं एक नॉर्मल सा एग्जांपल दूंगा, फ्यूचर में मैं थोड़ा डेप्थ में बताऊंगा इन द डेवऑप्स, क्योंकि अभी समझ में नहीं आएगा. सी, जैसे क्या होता है, मान लो आई वांट टू, आई एम ए डेवलपर, फॉर एग्जांपल आई एम ए सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड आई वांट टू डू द .NET कोडिंग. मैं मान लो कोई डेवलपर हूँ और मुझे .NET की लैंग्वेज आती है. लैंग्वेजेस होती है ना, पाइथन, गोलैंग, रूबी, PHP, जावा, .NET, ऐसे करके लैंग्वेजेस होती है डेवलपर्स की. मान लो आई एम द डेवलपर ऑफ .NET लैंग्वेज.
मुझे डॉट नेट लैंग्वेज पे काम करना आता है. सो आई एम क्रिएटिंग वन एप्लीकेशन. मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा हूँ. आई एम राइटिंग ए कोड. मैं उसका कोड लिख रहा हूँ. कोड लिखना किसका काम है? डेवलपर का. सॉफ्टवेयर बनाना किसका काम है? डेवलपर का. लैंग्वेज कौन चूज कर रहा है? डेवलपर. डॉट नेट में लिखूंगा. बट ये जो कोड मैं करूंगा ये मैं कहाँ पे करूंगा, कहाँ लिखूंगा? कोड लिखने के लिए कुछ चाहिए ना मुझे. क्या चाहिए मुझे? सर्वर चाहिए. जैसे चाहिए. VS कोड चलो उस टाइप से। सर्वर तो मिल जाएगा, बट सर्वर में कहाँ लिखूंगा? मेरे पास एक लैपटॉप है या मान लो मेरे पास एक सर्वर है, बट मैं कोड लिखूंगा किधर? नोटपैड में लिखूं? कहाँ लिखूंगा? आई एम राइटिंग ए कोड. मेरे पास एक कोड होता है. कोडिंग करने के लिए कुछ टूल चाहिए ना मुझे. टूल क्या होते हैं? बहुत सारे होते हैं. सम कंपनीज आर यूजिंग नोटपैड प्लस प्लस. सम कंपनीज आर यूजिंग VIS एडिटर, विजुअल एडिटर. विजुअल कोड। सम कंपनीज आर यूजिंग दिस वन, जो मेरे लैपटॉप में है. देखो ये वाला विजुअल स्टूडियो कोड, लाइक दिस. यहाँ पे कोड लिखेंगे कुछ लोग. तो ये जो इस टाइप के टूल होते हैं ना, जहाँ पे कोड लिखता है डेवलपर बैठ के, इसको रन टाइम बोलते हैं. रन टाइम इन्वायरमेंट, जो आपकी लैंग्वेज से कंपैटिबल होता है. इफ आई एम राइटिंग द पाइथन कोड, अगर मैं पाइथन में कोई कोड लिख रहा हूँ, तो मेरे पास ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए जहाँ पे मैं पाइथन की कोडिंग कर सकूं. दैट इज माई रन टाइम, ताकि मेरा कोड उसके साथ कंपैटिबल हो. दैट इज माई रन टाइम. क्लियर? समझ में आया कि यस नहीं सर। आया? तो दैट इज रन टाइम. रन टाइम का मतलब एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपकी लैंग्वेज जाके कंपैटिबल हो जाएगी. सो इसको मैं प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा ड्यूरिंग द डेवऑप्स. हम कोई कोडिंग नहीं करेंगे. अगेन रिमेंबर, कोडिंग इज नॉट अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द कंपनी. वो सब डेवलपमेंट टीम होती है. हम लोग ऑटोमेशंस एंड क्लाउड मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे. सो जब मैं डेवऑप्स कराऊंगा आपको, दैट टाइम आई विल ऑल्सो शो यू सम ऑटोमेशन ड्यूरिंग द टेराफॉर्म, कि मल्टीपल सर्वर्स कैसे एक साथ इंस्टॉल करते हैं. सो कोडिंग के थ्रू नहीं होगा. अगेन दैट इज अ टेम्पलेट, बट वो टेम्पलेट भी विजुअल स्टूडियो कोड में यूज होता है. सो आई विल शो यू दिस टूल यूज. इस टूल का यूज करना दिखाऊंगा मैं. इसलिए मेरे लैपटॉप में पड़ा हुआ है. गिट करके एक टॉपिक आएगा, गिट. तो गिट ऑल्सो वी विल यूज हियर. द टेराफॉर्म ऑल्सो वी विल यूज हियर. तो जो भी ऑटोमेशन करेंगे हम, दैट वी विल यूज द विजुअल स्टूडियो कोड टूल. तो उसके लिए यूज होगा ये. सो दीज 3 थिंग्स आर डन नाउ. IIS, PAS एंड SAS हमें समझ में आ गया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर ऑप्शन. अब कोई मेरे से पूछ रहा है इन द चैट व्हाट इज मिडल वेयर. देखो मिडल वेयर भी अब समझा देता हूँ क्या होता है. ये जो टूल है ना मेरा विजुअल स्टूडियो कोड, ये जो टूल है एक्चुअली, ये टूल है मेरा मिडल वेयर. ये जो सॉफ्टवेयर है, दिस इज माय मिडल वेयर. और इसके ऊपर जब मैं कोडिंग करूंगा, मान लो मैंने इस पे पाइथन की कोडिंग करनी है, सो आई नीड टू इंस्टॉल द प्लगइन ऑफ द पाइथन, ताकि इस पे पाइथन जब मैं लिखूं तो इसको पाइथन समझ में आ जाए. दैट इज माई रन टाइम. मतलब एक मिडल वेयर पे रन टाइम सपोर्ट किया जाता है. जैसे इफ हियर यू कैन सी, लेट मी शो यू, देयर आर एक्सटेंशन. देखो यहाँ पे कुछ एक्सटेंशन है. जैसे अगर मैं यहाँ पे पाइथन सर्च करूंगा, तो यहाँ पे पाइथन से रिलेटेड कुछ एक्सटेंशन आना चाहिए. अभी नहीं आया. मान लो लेट्स से इफ आई सर्च फॉर जावा, जावा से रिलेटेड देखो कुछ एक्सटेंशंस आ रहे हैं. दीज आर द रन टाइम. मतलब इनको इंस्टॉल करने के बाद ही मैं जावा की कोडिंग कर पाऊंगा. तब जाके मेरा ये टूल जो है जावा की कोडिंग को समझेगा. अभी नहीं समझता. सो दिस इज द सॉफ्टवेयर विच इज योर मिडलवेयर. और इस सॉफ्टवेयर के ऊपर जो आप कोडिंग कर रहे हो, फॉर दैट यू नीड द कंपैटिबिलिटी, एंड फॉर द कंपैटिबिलिटी यू इंस्टॉल द रन टाइम. ताकि जब आप डॉट नेट कोडिंग कर रहे हो तो डॉट नेट का रन टाइम इंस्टॉल करोगे. जब आप टेराफॉर्म में कुछ स्क्रिप्टिंग कर रहे हो तो आप टेराफॉर्म का यहाँ पे रन टाइम इंस्टॉल करोगे. ये देखो ये सब टेराफॉर्म के है. तो इनको रन टाइम बोलते हैं. रन टाइम मतलब कंपैटिबिलिटी करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना आपकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग. और मिडलवेयर मतलब वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर. अनदर एग्जांपल इज, जैसे मैंने एसक्यूएल का एग्जांपल दिया था. इफ यू वांट टू यूज द एसक्यूएल सर्वर, तो एसक्यूएल सर्वर यूज करने के लिए आपको एसक्यूएल को इंस्टॉल करना पड़ता है. मुझे एसक्यूएल चाहिए तो आई नीड टू इंस्टॉल द एसक्यूएल. सो दिस एसक्यूएल इज माय मिडलवेयर. ये मेरा मिडलवेयर है. और इसके ऊपर क्या चलाऊंगा मैं? इसके ऊपर अपना डेटा रन करूंगा मैं. डेटा वगैरह सेव करना, डेटा मैनेज करना, दैट आई विल डू ऑन द एसक्यूएल. सो एसक्यूएल इज माय मिडलवेयर. अंडरस्टूड? अब क्लियर हुआ यस कि सर. नहीं हुआ? यस सर. ओके. नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर. सो ये तीनों टाइप तो हमारे क्लियर हो गए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ क्लाउड एज पर द डिप्लॉयमेंट. क्लाउड
क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर वाला हमें कितने टाइप से दे सकता है एज पर द एक्सेस। एक तो हमने सर्विस देख ली कि या तो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर रेंट पे ले लूंगा, और आई विल टेक द प्लेटफॉर्म ऑन रेंट, और आई विल टेक द सॉफ्टवेयर ऑन रेंट, पूरा पूरा एप्लीकेशन ही रेंट पे ले लिया। अब आता है कि जब मैं रेंट पे लूंगा तो उसकी एक्सेसिबिलिटी क्या होगी। सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ डिप्लॉयमेंट मॉडल इन द क्लाउड, पब्लिक, प्राइवेट एंड हाइब्रिड। इसके अलावा और भी होता है, कम्युनिटी क्लाउड करके भी होता है एक, वो सब भी मैं बताऊंगा आपको, बट द मेजर 3 टाइप्स आर पब्लिक, प्राइवेट एंड हाइब्रिड। 3 टाइप मेजर है, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड एंड हाइब्रिड क्लाउड। ये जो क्लाउड आप पढ़ोगे ना, ये जो क्लाउड आप पढ़ रहे हो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, दिस इज अ पब्लिक क्लाउड, ये एक पब्लिक क्लाउड है। AWS इज a public cloud. GCP, Google Cloud is a public cloud. IBM is a public cloud. Alibaba, जो अलीबाबा क्लाउड आता है जैक मा का चाइना में, दैट इज a public cloud. ये सब पब्लिक क्लाउड एग्जांपल है। तो जो हम क्लाउड पढ़ने वाले हैं दैट इज a public cloud. Now what is public cloud, होता क्या है? So public cloud is a type of cloud where the cloud service providers like Amazon, Microsoft, Google, these kind of companies have created their data center in the different part of the world. इस टाइप की कंपनी ने अपने फिजिकल डेटा सेंटर बना रखे हैं इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड नाउ दे आर प्रोवाइडिंग दैट इंफ्रास्ट्रक्चर टू यू ऑन रेंट। वो आपसे रेंट चार्ज कर रहे हैं। मान लो आपकी कंपनी का नाम है विप्रो, यू वांट टू यूज द क्लाउड, आप उनके पास जाओ, टेक देयर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द रेंट, आपको 100 सर्वर्स चाहिए, 100 सर्वर्स ले लो उनके इंफ्रा से रेंट पे, दैट इज अ पब्लिक क्लाउड, उसी को पब्लिक क्लाउड बोला जाता है। तो पब्लिक क्लाउड मीन्स यू आर एक्सेसिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ समवन एल्स एंड यू आर पेइंग देम द रेंट, आप उनको चार्जेस दे रहे हो, एंड फॉर दिस यू नीड ए इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू आप उनकी सर्विसेज को एक्सेस कर रहे हो, यू आर एक्सेसिंग द सर्वर थ्रू द इंटरनेट, यू आर एक्सेसिंग द स्टोरेज थ्रू द इंटरनेट, सो दैट इज अ पब्लिक क्लाउड मॉडल। तो ये जितने भी क्लाउड है ना, ये जो AWS क्लाउड, एज्योर क्लाउड, GCP क्लाउड, दीज ऑल आर द पब्लिक क्लाउड एक्चुअली, ये सब पब्लिक क्लाउड के एग्जांपल है जहां पे आप किसी और कंपनी का डेटा सेंटर यूज कर रहे हो। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट का डेटा सेंटर यूज कर रहे हो, देन इट बिकम्स द एज्योर क्लाउड, उसको एज्योर क्लाउड बोला जाता है। सो यू आर यूजिंग द डेटा सेंटर ऑफ समवन एल्स ऑन द रेंट, आप किसी और का इंफ्रास्ट्रक्चर रेंट पे यूज कर रहे हो, दैट इज ए पब्लिक क्लाउड। एंड फॉर दिस यू नीड इंटरनेट, इसके लिए आपको इंटरनेट चाहिए, प्लस यू नीड वन सब्सक्रिप्शन, आपको एक अकाउंट भी चाहिए। पब्लिक क्लाउड यूज करने के लिए आपको अकाउंट चाहिए, विच इज योर पोर्टल, वो होता है आपका पोर्टल जिसपे आप यूजर आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हो, एंड बेस्ड ऑन योर एक्सेस यू यूज द सर्विसेज, आपको जो यूज करना है आप करो, एंड पे देम द रेंट, आप उनको मंथली पेमेंट दो, ईयरली पेमेंट दो, दैट इज अप टू यू, दैट इज द पब्लिक क्लाउड मॉडल। ये होता है आपका पब्लिक क्लाउड मॉडल। तो ये जो मैंने आपको लास्ट क्लास में जितने भी ये ऑन प्रेम के लिमिटेशंस बताए थे ना, द डिसएडवांटेजेस ऑफ द ऑन प्रेम, जिसकी वजह से क्लाउड आया था, वो सारे के सारे एक्चुअली जो बेनिफिट है क्लाउड के, दीज ऑल आर एप्लीकेबल फॉर द पब्लिक क्लाउड, ये सब पब्लिक क्लाउड के बेनिफिट्स है, ये सारे के सारे। ये जितने आज तक मैंने आपको बेनिफिट पढ़ाए थे ना लास्ट क्लास में, कि क्लाउड आने से बहुत पैसा बचता है, क्लाउड गिव्स यू स्केलेबिलिटी, पैचिंग मेंटेनेंस हमारा काम नहीं है, कॉस्ट बच जाती है कंपनी की, ये सब के सब पब्लिक क्लाउड के एडवांटेज है। दीज ऑल आर द एडवांटेजेस ऑफ द पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड ही फेमस है मार्केट में। जो जॉब आप करोगे ना, दैट यू विल डू ऑन द पब्लिक क्लाउड, आप पब्लिक क्लाउड मैनेज करोगे, एज्योर पब्लिक क्लाउड है, AWS पब्लिक क्लाउड है, तो आप इन पे काम करोगे, और इसी से कंपनी का खर्चा बचता है एक्चुअली। यही क्लाउड फेमस है, यही क्लाउड का फ्यूचर है, यही क्लाउड का प्रेजेंट है, और जो भी होने वाला है इसी क्लाउड पे होने वाला है। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, मिक्स्ड रियलिटी, IoT, जो भी कुछ चलता है, इट एक्चुअली रन्स ऑन दिस पब्लिक क्लाउड, वो सब पब्लिक क्लाउड पे चलता है, तभी कंपनी पैसा बचा पा रही है, क्योंकि उनका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, दे आर यूजिंग इट ऑन द रेंट, दैट्स इट। सेकेंड कैटेगरी ऑफ द क्लाउड इज प्राइवेट क्लाउड, दूसरा कैटेगरी होती है प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड क्या होता है? देखो, प्राइवेट क्लाउड जो है ना, एक्चुअली ये कहने की बात है, होता क्या था, स्टार्टिंग में सब कुछ ऑन प्रेम था, एवरीथिंग वॉज फिजिकल। IT इंफ्रा में सबसे पहले क्या था, ऑन प्रेम था सब कुछ। इन द ऑन प्रेम यू नीड टू परचेज एवरीथिंग फिजिकली, सब कुछ मुझे फिजिकली परचेज करना पड़ता था। नाउ व्हाट हैपेंड, हुआ क्या, पहले बहुत खर्चा बढ़ता था कंपनी का, मतलब खर्चा कैसे बचता था, बढ़ता था,
मान लो मुझे DHCP सर्वर चाहिए, यू ऑल नो अबाउट DHCP राइट, आई नीड DNS सर्वर, मुझे DNS भी चाहिए, आई नीड एप्लीकेशन सर्वर जहाँ पे मैं अपना सॉफ्टवेयर चलाऊंगा। मान लो मुझे 3 सर्वर रन करने हैं, मुझे ये 3 सर्वर चाहिए, सो आई नीड टू परचेज 3 फिजिकल सर्वर्स, मुझे 3 फिजिकल सर्वर परचेज करने पड़ते थे पहले। आई एम टॉकिंग अबाउट द सिनेरियो ऑफ 90s के दौर की बता रहा हूँ मैं आपको। 3 सर्विस चलाने के लिए 3 फिजिकल सर्वर चाहिए होते थे पहले, इसमें ओएस इंस्टॉल करो, इसमें ओएस इंस्टॉल करो, इसमें ओएस इंस्टॉल करो, फिर जाके DHCP DNS एंड ऐप सर्वर चलाओगे आप। और उसके हिसाब से अगर जितने सर्विस चलाओगे उतने सर्वर है फिजिकल, तो एडमिन भी तो चाहिए होते थे, इट वॉज कॉस्टली। और आपने एक सर्वर मान लो परचेज किया 2 लाख रुपीज का, अब 2 लाख रुपीज का सर्वर परचेज किया तो उसका हार्डवेयर भी तो बहुत हेवी होगा। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, CPU भी अच्छा खासा होगा, रैम भी अच्छी खासी होगी, स्टोरेज भी लगा होगा। क्या कर रहे हो आप उस पे, सिर्फ DHCP चला रहे हो, यू आर जस्ट रनिंग द DHCP। भाई 2 लाख का सर्वर खरीद के लाए, अच्छा खासा CPU, अच्छा खासा रैम, अच्छी खासी स्टोरेज, एंड यू आर रनिंग द DHCP ओनली। भाई DHCP क्या है, एक हल्की फुल्की सर्विस है, IP वाईपी देने का काम है। कितना यूज कर लोगे, 30% रिसोर्स, कितना CPU यूज कर लोगे, कितनी रैम यूज कर लोगे आउट ऑफ 100, 30%। ये जो मेरा लैपटॉप है, ये मेरा लैपटॉप, इफ आई ओपन द टास्क मैनेजर राइट नाउ, टास्क मैनेजर सबको पता है ना, कितना कितना यूज हो रहा है, कितना CPU, 35 36, कितनी रैम 63, स्टोरेज कितना 1%। मतलब ये मेरा जो लैपटॉप मैंने परचेज किया है, ये तो एक नॉर्मल लैपटॉप है, सर्वर थोड़ी है। i7 लैपटॉप है ये, i7 नहीं i5 लैपटॉप है, इसके अंदर 16 GB रैम लगी हुई है, SSD लगी हुई है 250 GB की। और मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, स्क्रीन शेयर है मेरी, जूम इज रनिंग, मतलब बहुत कुछ कर रहा हूँ, तब भी कितना यूज हो रहा है CPU, इतना सा। अब आप एक DHCP चलाओगे इतने लाखों के सर्वर पे लाके, उसकी कॉन्फ़िगरेशन तो इससे भी ज्यादा स्ट्रांग होगी ना, सर्वर है, सर्वर का हार्डवेयर तो ज्यादा स्ट्रांग होगा। DHCP चलाओगे कितना यूज कर लोगे, 20% 30%, 70% हार्डवेयर तो आपने वेस्ट कर दिया। 70% हार्डवेयर वेस्ट हो गया ना, जैसे मेरे लैपटॉप का वेस्ट हो रहा है। आई परचेज दिस लैपटॉप फॉर 1 लाख, मान लो 85,000 का मैंने लैपटॉप लिया, यूज कितना कर रहा हूँ, 20% 30%, बाकी तो वेस्ट हो रहा है ना। तो फाइनेंस वाले ऐसे देखते हैं चीजों को। तो उस टाइम पे इफ आई टॉक अबाउट द 90s सिनेरियो, एवरीथिंग यूज्ड टू बी फिजिकल, सब कुछ खरीदना पड़ता था फिजिकली, और एक सर्वर पे एक ही सर्विस चलती थी। अगर आप सोच रहे हो ना कि मैं एक ही सर्वर परचेज करूंगा, देन एक ही परचेज किया लेट से 2 लाख रुपीज का, एंड हियर आई विल रन द DHCP ऑल्सो, मैं इस पर DHCP चलाऊंगा, मैं इसमें DNS भी चला दूंगा, आई विल रन द एक्टिव डायरेक्टरी हियर ऑल्सो, मतलब 3 3 सर्वर चला दूंगा एक ही पे। इससे क्या होगा, मान लो AD ने आपका 30% यूज कर लिया, DHCP ने 30% यूज कर लिया, DNS ने मान लो 20% यूज कर लिया, तो एटलीस्ट आपका 80% तो यूज हुआ ना हार्डवेयर, कहीं ना कहीं। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं था उस टाइम पे। ऑन द वन फिजिकल सर्वर वी कुड नॉट रन मल्टीपल सर्विसेज, ये पॉसिबल नहीं था, बिकॉज देयर वाज नो रिडंडेंसी, रिडंडेंसी नहीं होती थी। अगर ये पूरा सर्वर ही क्रैश हो जाएगा तो सारी की सारी सर्विस एक साथ ही बंद हो जाती थी, तो ये ऑप्शन था ही नहीं उस टाइम पे। एंड दैट इज वाई इट वॉज वेरी कॉस्टली, मतलब बहुत ही खर्चा था, छोटी छोटी चीज चलाने के लिए एक एक सर्वर परचेज करना पड़ता था। मतलब इफ यू हैव 10 वेबसाइट्स टू रन, सो यू नीड टू परचेज 10 फिजिकल सर्वर्स दैट टाइम। that much was IT setup costly in the era of 1980s। इस टाइम पे इतना कॉस्टली होता था, उस टाइम पे हार्डवेयर भी बहुत एक्सपेंसिव था, बिकॉज दैट वाज नॉट एडवांस टेक्नोलॉजी। इसके बाद ये सब मुसीबतें देखते हुए अभी क्लाउड नहीं आया, देखो इन द ऑन प्रेम, जस्ट टू कंसिडर दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, वन कंपनी केम इनटू द मार्केट, एक कंपनी मार्केट में घुसती है, एंड द नेम ऑफ दैट कंपनी वाज VMware। ये सुना होगा आप लोगों ने, VMware। तो एक कंपनी मार्केट में घुसी जिसका नाम था VMware। VMware was the boon for the IT business। ये IT लोगों के लिए, IT वालों के लिए, IT की कंपनीज के लिए अन्नदाता बन के आई, एंड दिस कंपनी हैज हेल्प्ड टू सेव अ लॉट ऑफ कॉस्ट फॉर द बिजनेस। इस कंपनी ने एक कॉन्सेप्ट दिया विच इज कॉल्ड वर्चुअलाइजेशन। इन्होंने बोला वर्चुअलाइजेशन लेके आ रहे हैं हम। वर्चुअलाइजेशन अलाउस द कंपनी टू परचेज वन फिजिकल सर्वर। वर्चुअलाइजेशन ने बोला कि एक फिजिकल सर्वर परचेज करो, इसी के ऊपर एक OS डाल दो,
और इसके ऊपर ना आप मल्टीपल सर्विस चलाओ, डीएचसीपी भी इसी पे चला दो, डीएनएस भी इस पे चला दो, एक्टिव डायरेक्टरी भी चला दो, यू वुड बी एबल टू कंज्यूम योर रिसोर्सेज प्रॉपरली। आप अपने हार्डवेयर रिसोर्स को प्रॉपरली यूज कर पाओगे। लेट्स से आप 70% हार्डवेयर यूज कर पा रहे हो, क्योंकि तीन तीन सर्विस चला रहे हो ना, प्रॉपर यूज हो रहा है, तो कंपनी का खर्चा भी बच रहा है। एक ही सर्वर पे आप तीन सर्विस चला रहे हो, यू आर एबल टू सेव द कॉस्ट ऑफ अनदर टू सर्वर्स। पहले आपको तीन सर्वर खरीदने पड़ते थे, नाउ ऑन वन सिंगल सर्वर यू आर रनिंग थ्री सर्विस, और तीनों के तीनों आइसोलेटेड होंगे, एक दूसरे से आइसोलेटेड। मतलब इसको नहीं पता कि दो और सर्वर चल रहे हैं, इसको नहीं पता कि दो और चल रहे हैं सेम हार्डवेयर पे, दे विल बी आइसोलेटेड टू ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे से आइसोलेटेड थे। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन, इसी को वर्चुअलाइजेशन बोला गया। तो वर्चुअलाइजेशन के आने से बहुत सारा खर्चा तो बच गया कंपनी का, बट प्रॉब्लम तो थी ना, एक ही फिजिकल पे आप मल्टीपल सर्वर रन कर रहे हो, पूरा फिजिकल डाउन हो गया, देन गई रिडंडेंसी। प्लस इसकी भी तो एक लिमिट होगी ना, अगर आपके फिजिकल सर्वर में 8 कोर ऑफ सीपीयू लगे हुए हैं एंड 32 GB ऑफ रैम लगा रखी है आपने, अब कल को मेरे सर्वर पे लोड आ गया, मान लो इस वाले पे देयर इज अ लोड ऑन दिस सर्वर, इस पे लोड आ गया, मुझे इसकी रैम बढ़ानी है, मुझे इसका सीपीयू बढ़ाना है, कहाँ से बढ़ाऊंगा? है ही इतना, और इतना तो ऑलरेडी यूज हो रहा है तीन सर्वर्स के बीच में। हाउ विल आई इंक्रीज, कहाँ से करूं? फिर से परचेज करके लाऊं? वही तो प्रॉब्लम थी ऑन प्रेम में, ये भी तो ऑन प्रेम ही था, तब जाके क्लाउड आया था। मतलब पहले प्योरली ऑन प्रेम था, फिर ऑन प्रेम में वर्चुअलाइजेशन आया, तब जाके क्लाउड आया है। अब आगे जाके आप पढ़ोगे डेवऑप्स में कि क्लाउड का भी एडवांस वर्जन आ गया, ऑर्केस्ट्रेशन, क्यूबरनेटिस, माइक्रो सर्विसेज, वो आगे पढ़ाऊंगा। मतलब आफ्टर 2 मंथ्स और 3 मंथ्स, 2.5 मंथ्स, 2.5 महीने के बाद बताऊंगा वो, कि क्लाउड से भी एडवांस वर्जन आ गया अब, माइक्रो सर्विस जो डॉकर है, जो हम पढ़ेंगे आगे जाके, क्यूबरनेटिस वगैरह, वो क्लाउड के ऊपर ही है, बट क्लाउड का भी एडवांस है, तो अब उसको ज्यादा अहमियत मिलने लग गई। सो प्राइवेट क्लाउड क्या होता है? प्राइवेट क्लाउड इज नथिंग, प्राइवेट क्लाउड मीन्स कि जो कंपनी ऑन प्रेम यूज कर रही है, द कंपनी विच इज यूजिंग द ऑन प्रीमाइसिस बट दे आर यूजिंग द वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी। अगर कोई कंपनी वर्चुअलाइजेशन की टेक्नोलॉजी को यूज कर रही है अपने ऑन प्रेम में, एक ही फिजिकल सर्वर पे अगर वो मल्टीपल सर्विसेज रन कर रही है, दैट इज ए प्राइवेट क्लाउड, उसको प्राइवेट क्लाउड बोलते हैं। क्यों क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो बेस पे हार्डवेयर है, लेट्स से 16 GB का रैम लगा हुआ है और 4 कोर्स ऑफ सीपीयू लगे हुए हैं फॉर एग्जांपल। अब मेरी मर्जी है ना, मेरे पास टोटल इतना हार्डवेयर है, इस पे मैं 3 सर्वर चला रहा हूँ, मेरी मर्जी, मैं इसको लेट्स से 4 GB रैम दे दूंगा, क्योंकि ये डीएनएस है, मैंने इसको 4 GB रैम दे दिया, ये डीएचसीपी था, मैंने इसको 4 GB रैम दे दिया, और इस वाले को ज्यादा रैम चाहिए थी, मैंने इसको 8 GB रैम दे दी। फिर मैंने सीपीयू इसमें 1 कोर इसको दे दिया, 2 कोर सीपीयू इसको दे दिया, 1 कोर सीपीयू इसको दे दिया। दैट इज वर्चुअलाइजेशन, कि आप किस सर्वर को कितना रिसोर्स देना चाहते हो। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड प्राइवेट क्लाउड, क्योंकि रिसोर्स मैनेजमेंट आपके हाथ में था, तो इसलिए इसको प्राइवेट क्लाउड बोल दिया, कि आप जो है वर्चुअली, क्लाउड का मतलब ही होता है वर्चुअल, जो फिजिकली अवेलेबल नहीं है। तो आप एक ही फिजिकल सर्वर पे मल्टीपल सर्वर्स को रन कर रहे हो, दैट इज अ वर्चुअल सिनेरियो, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड प्राइवेट क्लाउड, इसलिए इसको प्राइवेट क्लाउड बोला गया। सो प्राइवेट क्लाउड इज नथिंग, प्राइवेट क्लाउड में कोई AWS, एज्योर ये सब नहीं होता, ये सब तो पब्लिक क्लाउड है। प्राइवेट क्लाउड मीन्स आपकी खुद की कंपनी का आईटी इंफ्रा होगा, आपका खुद का डेटा सेंटर है, बट वो वर्चुअलाइजेशन में चल रहा होगा, मतलब उसमें VMware भी होगा। आपने हर चीज फिजिकल नहीं ले रखी होगी, एक ही फिजिकल सर्वर पे आप मल्टीपल सर्वर चला रहे होंगे जस्ट टू सेव द कॉस्ट, और वो प्राइवेट क्लाउड है। उसमें सब कुछ मैनेज आप ही को करना है, योर कंपनी एडमिनिस्ट्रेटर्स विल मैनेज एवरीथिंग। कोई इशू आता है, यू आर रिस्पॉन्सिबल, कुछ करना है, डिप्लॉयमेंट, अपडेट्स, हॉट फिक्सेस, बग फिक्सिंग, दैट यू विल डू, आपकी एडमिन टीम सब कुछ मैनेज करेगी। तो जब क्लाउड नहीं आया था, जब एक्चुअल क्लाउड नहीं आया था, एक्चुअल क्लाउड है क्या? एक्चुअल क्लाउड पब्लिक क्लाउड होता है। तो जब क्लाउड नहीं आया था, तब तक जो आईटी इंफ्रा हम चलाते थे इन द वर्चुअलाइजेशन, क्लाउड आने के बाद उसको नाम दे दिया गया कि तू तो प्राइवेट क्लाउड है, तू प्राइवेट है और हम पब्लिक है। पब्लिक मतलब आप किसी और का डेटा सेंटर यूज कर रहे हो रेंट पे, प्राइवेट मतलब आपका खुद का डेटा सेंटर है, बट उसमें वर्चुअलाइजेशन चल रहा है टू सेव द कॉस्ट, दैट इज प्राइवेट क्लाउड। सो प्राइवेट क्लाउड में सब कुछ आपकी कंपनी ही मैनेज करेगी। और प्राइवेट क्लाउड कैसे बनता है? तो प्राइवेट क्लाउड वर्चुअलाइजेशन के थ्रू बनता है,
आप कॉस्ट बचा रहे हो ना, एक ही हार्डवेयर पे मल्टीपल सर्विस। तो वो कैसे बचाओगे? या तो आप VMware का टूल यूज करो विच इज कॉल्ड EXSI, या तो माइक्रोसॉफ्ट का आता है हाइपर वी, हाइपर वर्चुअलाइजेशन, या फिर Tanzu, अभी VMware ने एक और निकाला है Tanzu, या फिर आप यूज करोगे ओपन शिफ्ट एंड ओपन स्टैक, ये लाइनक्स का है, रेड हैट कंपनी का। तो इनमें से किसी भी एक टूल का यूज करके वी कैन रन मल्टीपल services in the same physical hardware in the virtualization environment. That is a private cloud. So under the private cloud, the complete control will be in your company hand. आपकी कंपनी के पास पूरा कंट्रोल रहेगा, एंड यूजर कंपनी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, मेंटेनेंस, मिडलवेयर, एप्लीकेशन मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, पैचिंग, अपग्रेड। मतलब ये जो मैंने पूरा डायग्राम दिखाया था ना आपको, ये वाला, इसका पूरा ये वाला जो पार्ट है, दैट विल बी मैनेज बाय योर ओन कंपनी, बिकॉज है तो वो ऑन प्रेम ही ना, बट उसमें वर्चुअलाइजेशन चल रहा है, दैट्स इट। तो व्हेन आई वाज नॉट द क्लाउड एडमिन, जब मैंने क्लाउड में कदम नहीं रखा था, जब मैं क्लाउड में नहीं आया था, दैट टाइम आई यूज टू वर्क ऑन EXSI। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया भी था, आई यूज टू वर्क ऑन द VMware EXSI। तब मैं लाइनेक्स और विंडोज का एडमिन था ऑन द EXSI प्लेटफॉर्म। तब मैं इसको भी जानता हूँ, मतलब मैंने इस पे काम किया है, इस पे, और हाइपर वी भी जानता हूँ मैं, और ओपन शिफ्ट पे तो अभी काम करता हूँ मैं। Tanzu अभी नया नया आया है, तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, इट्स हार्डली 1 or 2 years ओल्ड। अभी पूरे तरीके से कंपनी इसको यूज़ नहीं करती है। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस था, दिस वॉज द फर्स्ट टेक्नोलॉजी। जैसे AWS पहला क्लाउड था, ऐसे ही VMware ने सबसे पहले EXSI निकाला था। और ये वो वाला VMware नहीं है जो आप अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करके वो विंडो डालते थे, वो नहीं है ये। दैट इज VMware वर्क स्टेशन, जो आप लोगों ने OJT में पढ़ा होगा। VMware वर्क स्टेशन डाउनलोड करके विंडो चला दी, या Oracle वर्चुअल बॉक्स, ये वो नहीं है। दिस इज EXSI, दिस इज ऑन द CLI, ये पूरा कमांड से मैनेज होता है। तो एक तो VMware वर्क स्टेशन होता है जो आप लोगों ने यूज किया होगा, कंपनी में यूज होता था EXSI। तो प्राइवेट क्लाउड मीन्स ऑन प्रेम इंफ्रा विद द वर्चुअलाइजेशन। पब्लिक क्लाउड मीन्स किसी और का इंफ्रा जो आप यूज कर रहे हो, लाइक एज्योर, AWS, गूगल, और आप उनको रेंट दे रहे हो, दैट इज पब्लिक क्लाउड। तो ये जितने भी पब्लिक क्लाउड होते हैं वो ये सब है। तो हम कौन सा क्लाउड पढ़ रहे हैं? पब्लिक। मार्केट में किसकी डिमांड है? पब्लिक, क्योंकि ऑन प्रेम तो वही है ना, प्राइवेट क्लाउड, जो धीरे धीरे खत्म हो गया है। थर्ड क्लाउड इज योर हाइब्रिड क्लाउड। तीसरा क्लाउड है हाइब्रिड। हाइब्रिड इज वन ऑफ द टाइप। हाइब्रिड का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ क्लाउड, वन और मोर क्लाउड, और ऑन प्रेम प्लस क्लाउड। बहुत सी ऐसी कंपनी है जो ऑन प्रेम भी साथ में यूज कर रही है प्लस क्लाउड भी यूज कर रही है। मतलब मोस्टली इफ यू टॉक अबाउट द बिग MNCs, अगर आप बिग मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करते हो, तो वहाँ पे कुछ पार्ट ऑन प्रेम पे है, कुछ क्लाउड पे है। मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम कंप्लीटली क्लाउड पे नहीं ले जा सकते बिकॉज ऑफ द लीगल रेगुलेशन। जैसे इफ यू टॉक अबाउट द US बेस्ड कंपनीज, अगर आप US की बात करो, सो इन द US बेस्ड बिजनेसेस यू कैन नॉट रन द एंटायर डेटा ऑन द क्लाउड। आप पूरी कंपनी का डेटा क्लाउड पे सेव नहीं कर सकते। ऐसी गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट विल नॉट गिव यू द परमिशन टू रन देयर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द क्लाउड। गवर्नमेंट वाले बंदे जो है वो क्लाउड पे अभी भी ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि क्लाउड है तो किसी और का ना। अगर आप इंडियन गवर्नमेंट अगर एज्योर के ऊपर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएगी, एज्योर किसका है भाई? माइक्रोसॉफ्ट का। माइक्रोसॉफ्ट किसका है? US का। कल को US और इंडिया के बीच में लड़ाई हो गई देन? तो गवर्नमेंट तो किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट कभी भी क्लाउड को यूज नहीं करती, आज भी नहीं करती। दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, वो ऑन प्रेम खरीद लेंगे सब कुछ, दे डोंट केयर अबाउट द मनी। सो किसी भी कंपनी, किसी भी वर्ल्ड की कोई भी गवर्नमेंट क्लाउड पे आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर रन नहीं करती, दैट इज फर्स्ट थिंग, आज भी नहीं करती। इवन माइक्रोसॉफ्ट US का है, एज्योर US का है, बट आज भी US की गवर्नमेंट एज्योर के क्लाउड के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर रन नहीं करेगी, करेगी ही नहीं वो। दैट इज देयर कंप्लायंस, लीगल है। कल को लड़ाई हो गई कंट्री कंट्री में, तुम्हारा तो डेटा उठा के लीक कर देंगे, तो नहीं करते वो। मतलब गवर्नमेंट तो कभी नहीं करेगी, कंपनीज तो करती है, दे हैव द लीगल कॉन्ट्रैक्ट, ताकि गवर्नमेंट बीच में आके फिर लड़ भी लेगा, बट गवर्नमेंट अपना खुद का नुकसान नहीं करेगी कभी भी। दे डोंट कीप इट, उनके अपने पर्सनल रीजंस है, दे नेवर डू इट। देर आर सम स्टैंडर्ड्स, लेट्स से देर इज ए स्टैंडर्ड कॉल्ड हिप्पा। अभी आप आगे आगे जाके सुनोगे ये सब चीजें। हिप्पा, हिप्पा स्टैंडर्ड जो है वो एप्लीकेबल होता है मेडिकल बिजनेस में। मेडिकल के बिजनेस में ये वाला स्टैंडर्ड लगता है हिप्पा। तो जो कंपनी मेडिकल का बिजनेस करती है, एनी फार्मास्यूटिकल ड्रग कंपनी जो दवाइयाँ बनाती है,
यानी हॉस्पिटल, अगर उनका आईटी इंफ्रा तो हर जगह होता है ना, अगर वो आईटी इंफ्रा को क्लाउड पे लगा रही है, दैट इज ओके, वो लगा सकती है, चाहे कोई भी क्लाउड लो, AWS, Azure, GCP, whatever. But in the medical businesses, you can run the infra on the cloud, but you cannot save your data on the cloud, क्योंकि ये लीगल है, लॉ है। आप मेडिकल बिजनेसेस में अपना डेटा क्लाउड पे नहीं रख सकते, आपको उसको ऑन प्रेम पे रखना पड़ेगा, मतलब फिजिकली स्टोर करना पड़ेगा। इंफ्रा सर्वर लगाओ क्लाउड पे, नेटवर्क करो क्लाउड पे, सब कुछ करो क्लाउड पे, लोड बैलेंसर सब कुछ, सेव द कॉस्ट। बट डेटा रखने के लिए आपको फिजिकल सर्वर परचेज करने पड़ेंगे, दैट इज ए हिप्पा स्टैंडर्ड, और ये फॉलो करना पड़ेगा। हर देश का एक कंप्लायंस है, इवन कंट्री ऑल्सो हैव देयर कंप्लायंस, कंट्री के भी कंप्लायंस है भाई। चाइना बोलता है, चाइना वाले बोलते हैं कि अगर आप कोई क्लाउड यूज कर रहे हो तो हमारा क्लाउड होना चाहिए, वो विच इज अलीबाबा का क्लाउड। चाइना में अलीबाबा का क्लाउड यूज करो, या तो ऑन प्रेम रखो सब कुछ। अगर आप एज्योर यूज करना चाहते हो करो, वो कह रहे हैं एज्योर भी यूज करो, बट एज्योर का जो डेटा सेंटर है ना, वो आप कोई अपनी मर्जी से चूज नहीं कर सकते। जैसे कि मैं चाइना में बैठ के यूएस के डेटा सेंटर में सर्वर नहीं बना सकता, आई हैव टू चूज देयर चाइना रीजन। और ये जो चाइना रीजन है ना, उनका चाइना रीजन मतलब चाइना का डेटा सेंटर जो चाइना के अंदर ही होगा, इस पे कोई दूसरी कंट्री के लोग अपना सर्वर होस्ट नहीं कर सकते। मतलब मैं यूएस में बैठा हूं, सो आई कैन नॉट रन माई सर्वर ऑन द चाइना डेटा सेंटर ऑफ एज्योर। एज्योर में चाइना है, चाइना के अंदर मतलब एज्योर है, बट वो सिर्फ चाइना के लोगों के लिए है, अदर कंट्रीज कैन नॉट यूज इट, ये सिर्फ चाइना के लिए है लो। बाकी आप इंडिया में बैठे हो, आपकी मर्जी, आप यूएस में सर्वर लगाओ, आपकी मर्जी आप यूके में लगाओ, बट चाइना में नहीं लगा सकते, दैट इज देयर लीगल लीगल लॉ। उनकी मर्जी, वो आपको पूरा पैसा दे रहे हैं। एज्योर का चाइना के डेटा सेंटर की पूरी कोस्टिंग उनकी चाइना गवर्नमेंट कवर करती है, तो किसी और कंपनी को अलाउ ही नहीं करते वो। उनका फायरवॉल इतना स्ट्रांग है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, उस पर फायरवॉल है उनका, उसको ब्रेक करके आगे जाना पड़ता है, तो उनकी परमिशन चाहिए, तो दैट इज अ लॉ। सो बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है विच इज रनिंग कॉम्बिनेशन ऑफ इंफ्रा, मतलब वहां पे ऑन प्रेम भी मिलेगा आपको देखने को, प्लस क्लाउड भी मिलेगा। सो स्पेशली बड़ी बड़ी एमएनसीज के अंदर, क्योंकि ऑन प्रेम तो वो लगा चुके हैं ना ऑलरेडी, ऐसा थोड़ी है बिल्कुल ही खत्म कर देंगे। सो सम सर्विसेज विल बी ऑन प्रेम, जहां उनको लगता है कि यार मैं क्लाउड पे नहीं रखना चाहता, और कुछ सर्विसेज क्लाउड पे चल रही होगी। तो कॉस्ट बचाने के लिए जितना हो सकता है कंपनीज आर रनिंग देयर इंफ्रा ऑन द क्लाउड, बट कुछ कुछ सर्विस ऐसी है जो ऑन प्रेम पे चलानी पड़ेगी बिकॉज ऑफ देयर लॉ, बिकॉज ऑफ देयर लीगैलिटीज। जैसे मैंने हिप्पा का स्टैंडर्ड बताया, मेडिकल बिजनेस है तो उनको डेटा तो ऑन प्रेम में ही रखना पड़ेगा, चाहे वो इंफ्रा क्लाउड पे चला लो, कॉस्ट बचाओ, दैट इज ओके, बट डेटा नहीं रख सकते क्लाउड पे। सो उस टाइम पे उनको ऑन प्रेम पे डेटा रखना पड़ेगा और क्लाउड पे इंफ्रास्ट्रक्चर रन करना पड़ेगा, दैट इज हाइब्रिड कॉम्बिनेशन ऑफ टू, ऑन प्रेम भी है और क्लाउड भी है, क्लाउड कोई भी हो सकता है। सो दैट इज हाइब्रिड इंफ्रा। कुछ जगह पे ऐसा भी होता है कि बहुत पुराना कोई एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन क्लाउड पे चल ही नहीं रहा, इट इज नॉट कंपेटिबल, ऐसा भी हो सकता है। मान लो आप 1990s का एप्लीकेशन लाके आज एजोर पे या AWS पे चलाओगे, इट विल नॉट बी कंपेटिबल, क्योंकि क्लाउड तो आया ही नहीं था उस टाइम पे, क्लाउड तो आया नहीं, तुम्हारा सॉफ्टवेयर तो बहुत पुराना है ना, तुमने उसको डेवलप किया ही नहीं आज के जमाने के हिसाब से, अब उसको थोड़ी ना क्लाउड पे चला लोगे, इट विल नॉट फंक्शन, इट विल नॉट बी कंपैटिबल। तो उस केस में आप शुरू से उसको ऑन प्रेम पे ही तो चला रहे हो, फिजिकल सर्वर पे इंस्टॉल करके, तो अभी भी वैसे ही करना पड़ेगा, बाकी की चीजें क्लाउड पे चलेगी। सो अगेन देयर विल बी हाइब्रिड इंफ्रा। सो जिन कंपनीज में ऑन प्रेम प्लस क्लाउड दोनों देखने को मिल रहा है, दैट इज ए हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको हाइब्रिड इंफ्रा बोलते हैं। और स्पेशली जो बड़ी बड़ी एमएनसीज है, दे हैव द हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर, 30% ऑन प्रेम रहेगा मान के चलो, और 70% क्लाउड, उन सब कंपनीज में आपको देखने को मिलेगा। तो 70% क्लाउड पे इंफ्रा चल रहा है मान लो, 30% ऑन प्रेम पे चल रहा है बिकॉज ऑफ कंप्लायंस। कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज है कि डेटा नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, कुछ पुरानी एप्लीकेशन है विच इज नॉट कंपैटिबल ऑन द क्लाउड, तो भी ऑन प्रेम पे चल रही है। कुछ कंपनीज में आपको 20% ऑन प्रेम मिलेगा, प्लस 80% क्लाउड पे मिलेगा। व्हेन आई टॉक अबाउट द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में तो भाई 98% ऑन प्रेम ही मिलेगा, 2% हो सकता है क्लाउड मिल जाए, अदरवाइज 100% पूरा का पूरा ऑन प्रेम ही होता है गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, दे डोंट कीप इट ऑन द क्लाउड। सरकार की कभी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्लाउड नहीं यूज करती आज भी, ऐसा सिर्फ इंडिया में नहीं है, दैट इज ए कंप्लायंस फॉर द एंटायर वर्ल्ड, क्योंकि उनके पास इतना पैसा है वो खुद का इंफ्रा लगाएगी,
इंडियन एयरफोर्स के अंदर, इन द इंडियन एयरफोर्स दे आर यूजिंग द रेड हैट सर्वर, सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं, लाइनेक्स यूज करते हैं वो इंडियन एयरफोर्स में, क्यूबरनेटीज चलाते हैं वो ओपन शिफ्ट। तो ये डेवऑप्स में बताऊंगा। फिलहाल यू विल सी द हाइब्रिड इंफ्रा इन द कंपनी। इसी की वजह से ऐसा नहीं है कि नेटवर्क वालों की जॉब बिल्कुल ही खत्म हो गई है, सर्वर वालों की खत्म हो गई है, कम हो गई है। अभी भी तो है ना, नेटवर्क वाले बंदे तो काम तो करते हैं ना, CCNA CCNP इज स्टिल देयर। सर्वर वाले अभी भी तो काम करते हैं, डेटाबेस वाले अभी भी तो जॉब कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 30% इंफ्रा बचा हुआ है आज भी उनका। क्लाउड वालों की डिमांड ज्यादा क्यों हो गई है? क्योंकि 70% क्लाउड पे ले गए हैं वो कंपनी वाले। सेम कंपनी में 70% क्लाउड पे है, 30% ऑन प्रेम है। पूरे वर्ल्ड का रेशियो निकालूं सो 85% कंपनीज आर ऑन द क्लाउड आज की डेट में, 15% ऑन प्रेम पे पड़ी हुई है। मतलब पूरे वर्ल्ड में अगर मैं फिगर निकालूं हाइब्रिड के हिसाब से, ग्लास डोर पे अगर आप डेटा चेक करोगे 85% कंपनीज आर ऑन द क्लाउड। सो क्लाउड पे आना मजबूरी है। अगर आपको आईटी में रहना है, इफ यू आर द इंफ्रास्ट्रक्चर गाय, तो क्लाउड पे मजबूरी है, वरना जॉब खत्म आपकी। क्योंकि 30% के बीच में तो पुराने बंदों को पहले टैकल किया जाएगा ना, क्योंकि उनको ज्यादा एक्सपीरियंस है। जो बंदा 10 साल से सर्वर मैनेज कर रहा है, दैट पर्सन इज मोर एक्सपीरियंस देन यू। तो जब 30% में जब जॉब निकलेगी सर्वर एडमिन की, तो उसको पहले कंसिडर करेंगे ना, क्योंकि उसको नॉलेज ज्यादा है आपसे। तो इस वजह से यहाँ पे जॉब कम हो गई है, नेटवर्क इंजीनियर कम हो गए हैं, सर्वर इंजीनियर्स आर लेस, कम हो गए हैं ये सब। क्लाउड के बढ़ गए हैं क्योंकि क्लाउड पे इंफ्रा ज्यादा है आज की डेट में। बट यस, इन द बिग कंपनी हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी देयर। तो आप जब बड़ी बड़ी एमएनसी की बात करते हो तो हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। छोटी मोटी स्टार्टअप दे हैव फुली ऑन द क्लाउड, उनका तो 100% इंफ्रा ही क्लाउड पे है, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है। बट जो बड़ी कंपनीज है, जिनको स्टैब्लिश हो चुकी है, जिनको लीगल फॉर्मेलिटीज फॉलो करनी है, कुछ चीजें अपने कंट्रोल में भी रखना चाहते हैं, वो हार्डवेयर कुछ अपने कंट्रोल में चाहिए उनको, क्योंकि डेटा रखा हुआ है उन्होंने मान लो, सो दे कीप इट ऑन द हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर। सो हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा ऑन प्रेम प्लस क्लाउड। क्लाउड कोई भी हो सकता है, और वहां पे आपका जो रोल होगा, आप काम करोगे सिर्फ क्लाउड वाले एरिया पे। ऑन प्रेम के लिए अलग से टीम होगी, मतलब नेटवर्क के लिए अलग से टीम है, सर्वर के लिए अलग से टीम है। दे विल टेक केयर ऑफ द ऑन प्रेम। मान लो 20% ऑन प्रेम है, तो 20% के लिए कुछ इंजीनियर्स होंगे। आपका काम सिर्फ क्लाउड मैनेज करना है, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑन प्रेम। तो हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका काम सिर्फ क्लाउड मैनेज करने का ही होगा। नाउ देर आर कंपनीज हु आर यूजिंग मल्टी क्लाउड ऑल्सो। बहुत सी कंपनी ऐसी भी है जो एज्योर भी यूज कर रही है, प्लस AWS भी यूज कर रही है, प्लस GCP भी देखने को मिलेगा। सो मल्टी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर आर ऑल्सो देयर इन सम कंपनीज। जैसे उनको लग रहा है कि कुछ सर्विस जो है एज्योर में सस्ती है, सो दे विल गो विद एज्योर। कुछ सर्विस AWS में सस्ती है, सो दे विल गो विद AWS। मतलब हो सकता है कि एज्योर में सब कुछ चलाऊंगा तो थोड़ा बहुत महंगा पड़ जाए, लेकिन अगर मैं मिला के चलाऊं तो AWS में जो चीज सस्ती मिलती है वहां चला दूंगा, एज्योर में जो चीज सस्ती मिलती है यहाँ चला दूंगा। दैट इज मल्टी क्लाउड। इससे भी कंपनी और पैसा बचा रही है। So this kind of infra is also there in company. The company where I work for, in the KPMG, we have the infrastructure of Azure, we have the infrastructure on Alibaba Cloud. AWS हम यूज करते हैं डेवलपर्स के लिए, डेवलपर वहां पे जाके अपना टेस्टिंग वेस्टिंग करता है AWS पे लाइनेक्स की। तो 3 क्लाउड है। तो जो बंदा जिस क्लाउड के लिए एक्सपर्टीज होगा उसको उस पर हायर किया जाएगा। एज्योर पे काम करने के लिए एज्योर वाले हैं, AWS के लिए AWS वाले हैं। और जो ऊपर बैठे हुए हैं ना, जो ऊपर बैठे हैं, मतलब जो L3 L4 L5 पे बैठे हुए हैं, उनको मल्टी क्लाउड आता है। उनका स्पेशलाइजेशन किसी एक क्लाउड में होगा, बट दे नो मल्टी क्लाउड। जैसे मैं मल्टी क्लाउड जानता हूँ, बट माई स्पेशलाइजेशन इज इनटू द एज्योर। मुझे AWS भी आता है, मुझे अलीबाबा भी आता है, बट एक्सपर्ट एरिया पे उनको हायर किया जाता है। बट जरूरत पड़ने पे वो AWS को भी सपोर्ट कर पा रहे हैं, जरूरत पड़ने पे वो अपना अलीबाबा या कोई GCP वगैरह आता है, दे कैन ऑल्सो सपोर्ट दैट। तो एक चीज में एक्सपर्टीज और बाकी चीज में जनरलाइजेशन, ऐसे भी होता है। तो बहुत सी कंपनी में इस टाइप से भी देखने को मिलेगा आपको, दे हैव मल्टी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। बट उसके लिए ये नहीं है कि आप मल्टी क्लाउड पढ़ोगे, उसका ये मतलब नहीं है कि आप मल्टी क्लाउड पढ़ने बैठ जाओगे। एक क्लाउड में एक्सपर्टीज लेके आओ, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अदर क्लाउड एज वेल। क्योंकि कॉन्सेप्ट सबका सेम है, नाम अलग अलग होते हैं। जैसे एज्योर में वी कॉल इट VM, इन AWS वी कॉल इट EC2। तो अगर एक क्लाउड कोई भी आपको आता है, चाहे आपको AWS आता है चाहे एज्योर आता है, आप तीसरा क्लाउड इजिली सीख जाओगे। लेकिन अभी सीखने की जरूरत नहीं है, पहले एक क्लाउड पे काम करो। जब आप सीनियर लेवल पे जाओगे, देन यू कैन इंक्रीज योर नॉलेज बाय लर्निंग मल्टीपल क्लाउड्स। तब आप धीरे धीरे करना।
अभी स्टार्टिंग में एक ही क्लाउड पे जॉब लगती है आपकी, वो बहुत सीनियोरिटी पे L3 L4 L5, ये बंदे मल्टीपल क्लाउड जानते हैं क्योंकि दे आर लाइक ए कंसल्टेंट। तो यू विल सी द हाइब्रिड इंफ्रा इन द कंपनी, ऑन प्रेम प्लस क्लाउड आपको दोनों देखने को मिलेगा कंपनी के अंदर। आप सिर्फ क्लाउड वाला पोर्शन हैंडल करोगे, क्लाउड का पोर्शन ज़्यादा मिलेगा कंपनी में, ऑन प्रेम विल बी वेरी लेस और रेयर। मल्टी क्लाउड भी देखने को मिलेगा कंपनीज के अंदर, बट आपको जिस चीज़ के लिए हायर किया है दे विल ओनली टेक द वर्क ऑफ दैट क्लाउड। एज्योर आज की डेट में ज़्यादा यूज होता है कंपनीज के अंदर। इन द डेमो ऑल्सो आई हैव गिवन यू सम फैक्ट्स कि एज्योर को कंपनी ज़्यादा यूज करती है बिकॉज एज्योर इज लेस एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू द AWS और एनी अदर क्लाउड। एज्योर के बहुत सारे बेनिफिट्स है, वो मैंने आपको बताए थे, दोबारा नहीं बताऊंगा, यू विल गेट बोर। ये स्लाइड आपके पास शेयर कर दी गई है, इससे आप पढ़ लोगे। ये सब मैंने डेमो में समझा दिया था कि माइक्रोसॉफ्ट का यूजर बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पहले से ही माइक्रोसॉफ्ट की चीज़ों को यूज़ कर रही है कंपनी, एप्लीकेशन कंपैटिबिलिटी मिल जाती है, माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स इंटीग्रेट हो जाते हैं बेटर एज्योर में, चार्जेस बहुत कम है, पूरे अर्थ में सबसे ज़्यादा डेटा सेंटर एज्योर के है। ये सब चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी थी पहले ही, सो आई विल नॉट रिपीट देम अगेन, बोरिंग हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो इसको ऐसे ही पढ़ लेना। हाँ, किसी को कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है देन यू कैन डिस्कस विद मी। नहीं समझ में आता है तो आप वो पॉइंट लेके आ जाओ कि ये वाला पॉइंट समझा दो, मेरे को नहीं समझ में आया। अदरवाइज कोई पूछने वाला है नहीं, बट फिर भी पता होना चाहिए कि एज्योर को क्यों ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। फिर मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, एक स्लाइड दिखाई थी मैंने आपको, दैट ऑल्सो आई विल शेयर विद यू। वेयर इज दैट स्लाइड, कहाँ चली गई, यहाँ से दिखाता हूँ, वेट। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। AJ900, ये वाली स्लाइड है। देखो इस स्लाइड में और भी चीज़ें थी कि माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है ऑलरेडी कंपनी में यूज़ होते हैं। फिर मैंने आपको एक वेबसाइट दिखाई थी जहाँ पे फैक्ट्स लिखे हुए थे, एज्योर वर्सेस AWS, अगर आप सर्च करोगे इन द गूगल, सो ऑफिशियल जो माइक्रोसॉफ्ट का लिंक है, ऑफिशियल साइट पे माइक्रोसॉफ्ट की अगर आप जाओगे, वहाँ पे भी मैंने आपको कंपैरिजन दिखाया था, दिस वन, ये ऑफिशियल साइट है इनकी ओरिजिनल। सो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि एज्योर जो है उसका खर्चा कम है, और ये कंपैरिजन भी था उसमें, पूरा पूरा उन्होंने फैक्ट्स दे रखे हैं कि एज्योर क्यों बेस्ट है। सबसे ज़्यादा एज्योर को यूज़ करते हैं सी, मोर देन 95% ऑफ द फॉर्च्यून 500 कंपनीज आर यूजिंग एज्योर। कंपनीज के नाम भी यहाँ पे कुछ है, क्यों यूज़ करते हैं रीज़न भी दे रखे हैं। सबसे ज़्यादा डेटा सेंटर पूरे वर्ल्ड में है, 60 रीजन्स में उनके डेटा सेंटर है, मोर देन एनी अदर क्लाउड प्रोवाइडर। मतलब दुनिया में जितने भी क्लाउड वाले हैं, AWS, GCP, रैक स्पेस, एनीवन, उसमें सबसे ज़्यादा एज्योर के पास फिजिकल डेटा सेंटर है। ग्लोबल इंफ्रा सबसे ज़्यादा इनका बड़ा है, इनके पास 100 से ज़्यादा कंप्लायंस के सर्टिफिकेशन है लीगल, प्लस इनकी सिक्योरिटी पे ये बहुत पैसा खर्च करते हैं। मतलब यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा कितना कितना पैसा खर्च करते हैं, ये देखो पूरे पूरे लिंक है। $1 बिलियन तो इन्वेस्ट करते हैं ये सिक्योरिटी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, और 3500 साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है इनके पास जो हैकिंग वगैरह देखने के लिए है। 100 से ज़्यादा कंप्लायंस ऑफरिंग है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जो है वो ये लोग डेवलप कर रहे हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग इनका है। तो इन्होंने बहुत सारे रीजंस दे रखे हैं वाई द एज्योर इज द बेस्ट, मतलब ये AWS से कंपेयर करके दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो ये सब मैंने आपको पढ़ाया था ड्यूरिंग द डेमो। बाकी इसकी वीडियो चाहिए तो वो भी मिल जाएगी आप लोगों को, अगर किसी को चाहिए होगी डेमो वीडियोस, सो दैट कैन ऑल्सो बी प्रोवाइडेड टू यू। वो सब आपको मैं लिंक दे दूंगा या तो एडमिन टीम भी दे देगी। तो इन सबको देख लेना कि एज्योर में क्या क्या है, क्यों है, मैं दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूँगा। बाकी वी आर डन विद द थ्योरी पार्ट नाउ। सो हम पब्लिक क्लाउड पढ़ रहे हैं, एज्योर पढ़ रहे हैं। एज्योर पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एज्योर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आज की डेट में AWS से ज़्यादा एज्योर की डिमांड हो गई है, क्यों हो गई है, दीज आर द रीजंस। इतने सारे रीजन है, 2 स्लाइड पे रीजन है, पूरी पूरी साइट पे रीजन है। लेट मी शेयर यू द लिंक ऑल्सो। तो इसलिए एज्योर को पढ़ना ज़्यादा ईजी भी है, जॉब लेना भी ईजी है, मार्केट भी अच्छा है एज्योर का। बाकी AWS इज ऑल्सो ओके, बट AWS और एज्योर में मैंने आपको कंपैरिजन बताया था कि किस में जॉब लेना इजी होगा। सो एज्योर इज ओके टू गेट द जॉब फर्स्ट, क्योंकि AWS में स्क्रिप्टिंग आ जाती है, लाइनक्स स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, टेराफॉर्म यू शुड नो, पाइथन बेसिक्स पता होने चाहिए। सो एज्योर के साथ ऐसा केस नहीं है।
Now, Rakesh is posting one of the question that if any company has the on-premises plus Office 365, so is it hybrid infra? So no, it is not hybrid, क्योंकि Office 365 जो है ना वो एक पब्लिक क्लाउड नहीं है, दैट इज अ SaaS सर्विस। अगर कोई पब्लिक क्लाउड यूज कर रही है कंपनी ऑन प्रेम के साथ, लाइक AWS, एज्योर या GCP, अगर वो ऑन प्रेम के साथ यूज कर रही है, दैट इज अ हाइब्रिड इंफ्रा। अगर वो ऑन प्रेम इंफ्रा में ऑफिस 365 चला रही है, सो यू कैन नॉट कॉल इट कंप्लीट हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि ऑफिस 365 इज अ SaaS सर्विस, सो इट्स नॉट ए पब्लिक क्लाउड। So if it is Azure, AWS or GCP along with the on-prem, then it is hybrid. तब उसको आप hybrid बोलोगे। So hybrid infrastructure देखने को मिलता है कंपनी में। बाकी where is that? So ये स्लाइड मैंने पहले भी डाल दी थी आपके उस पे लिंक पे। I will also upload it again अगर किसी को नहीं मिली है तो। So hybrid infra is the combination of private cloud and public cloud. Private cloud मतलब आपका on-prem भी चल रहा है प्लस public cloud अभी चल रहा है। That is hybrid cloud. उसको hybrid बोलते हैं। So with this we are now done with the theory part. ये थ्योरी सबके लिए कॉमन थी। इट्स नॉट अबाउट एज्योर। AWS में भी सेम थ्योरी चलेगी, एज्योर में भी सेम, GCP में भी सेम, क्योंकि ये पूरी क्लाउड की थ्योरी थी। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स वी विल नाउ स्टार्ट वर्किंग ऑन द प्रैक्टिकल पार्ट। मैं आपको सबसे पहले ये सिखाऊंगा हाउ टू क्रिएट द एज्योर पोर्टल। इस तरीके से एज्योर पोर्टल दिखता है आपका। तो ये पोर्टल कैसे बनाते हैं आई विल शो यू। आई विल गिव यू ए टूर ऑफ द पोर्टल। पोर्टल में कौन कौन सी सर्विस है, कैसे कैसे लेवल पे यूज होती है, आई विल गिव यू ए टूर ऑफ दिस। देन वी विल स्टार्ट अवर फर्स्ट प्रैक्टिकल विच इज रिसोर्स ग्रुप एंड वर्चुअल मशीन। सर्वर्स कैसे बनते हैं क्लाउड के ऊपर, रिसोर्स ग्रुप का क्या यूज है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। आई विल टॉक अबाउट द डेटा सेंटर्स, कहाँ कहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर है, किस किस लोकेशन में है। एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट द सब्सक्रिप्शन ऑल्सो, कि सब्सक्रिप्शन का क्या इंपॉर्टेंस है कंपनी के परस्पेक्टिव से। तो इतने प्रैक्टिकल हमें करने हैं। नेक्स्ट वीकेंड से स्टार्ट करेंगे हम लोग। विद दिस ऑल द इंट्रोडक्शन पार्ट इज नाउ कंप्लीटेड। बाकी इसकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह आपको मिल जाएगी। अगर कोई डाउट रहता है पढ़ने के बाद, यू कैन डिस्कस विद मी इन द नेक्स्ट क्लास। आई विल गाइड यू अगेन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सबको yes, sir. क्लियर है? एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट सो फार? सर ये मेरी फर्स्ट क्लास थी, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कितने हो गए हैं। आज सेकंड क्लास थी। आज ये सेकंड है। ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने बस ये बताया था ऑन प्रेम क्या होता है, उसमें क्या क्या कमियां थी, क्लाउड क्यों आया, क्लाउड के आने से क्या क्या बेनिफिट हुए बिजनेस को, और क्लाउड कैसे काम करता है, क्लाउड का बिजनेस कैसा होता है। आज मैंने क्लाउड के टाइप से स्टार्ट किया है। तो इतना ही हुआ है बस। ओके सर। तो उनसे वीडियो ले लेना आप, जो लास्ट क्लास हुई थी ना, तो आपने हम्म, आपने जिसके थ्रू एडमिशन लिया है उनसे आप वीडियो ले लेना लास्ट क्लास की। ही और शी विल शेयर इट विद यू। उसको देख लेना। वो भी थ्योरी ही थी, इंट्रोडक्शन पार्ट था ये 2 क्लासेस में। सो कुछ डाउट रह जाएंगे, यू कैन डिस्कस विद मी। आप मेरे से पूछ लेना फिर। सर इन फ्यूचर इसमें ऐसे कोई सॉफ्टवेयर चाहिए क्या जो ऑफिस लैपटॉप पे वर्किंग ना करे। नहीं, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर तो नहीं चाहिए क्लाउड के लिए, हमें पोर्टल चाहिए। पोर्टल बनाना मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि और मेरे हमारे पास पास ऑफिस का लैपटॉप है, इसमें काफ़ी सिक्योरिटीज़ हैं, तो वो ब्लॉक कर सके मे बी। नहीं, सॉफ्टवेयर तो नहीं चाहिए, बट ये पोर्टल आप ओपन करके देख लेना कि ये पोर्टल खुलता है कि नहीं खुलता आपके लैपटॉप में। मैं ये लिंक दे देता हूँ, टाइप कर देता हूँ मैं वहाँ पे ग्रुप चैट में, portal.azure.com, क्योंकि बहुत सी कंपनी इसको पर्सनल लेवल पे ब्लॉक करके रखती है कि कोई बंदा ट्रेनिंग ना करने लग जाए। तो मैंने लिंक डाला है portal.azure.com, इसको देख लेना ये एक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर ये एक्सेस हो जाएगा फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर इसको भी ब्लॉक कर रखा है फिर तो खुलेगा नहीं। ठीक है, मैं चेक करके 1 मिनट कंफर्म करता हूँ। ठीक है, तो ये देख लेना। बाकी तो और कुछ नहीं चाहिए एक्स्ट्रा, ये पोर्टल खुलना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए ताकि प्रैक्टिकल्स हो सके, दैट्स इट। ओके। तो नाउ वी कैन रैप अप दिस कॉल। अब इसको हम यहीं बंद करते हैं एंड वी विल कनेक्ट नेक्स्ट वीकेंड। नेक्स्ट वीकेंड सैटरडे क्लास होगी या नहीं होगी उसका शेड्यूल आ जाएगा आपके पास, वैसे तो होनी चाहिए। अदरवाइज अगर इस वाले सैटरडे को नहीं होती है तो डेफिनेटली नेक्स्ट टू नेक्स्ट वाले सैटरडे को तो हो ही जाएगी। मतलब नेक्स्ट वाले सैटरडे को अगर नहीं होती है तो संडे को होगी, अदरवाइज सैटरडे संडे ही होगी। तो वो आपको पता लग जाएगा, यू कैन जस्ट वॉच इट ऑन द पोर्टल। पोर्टल पे सब कुछ दिख जाएगा आपको, टाइमिंग वगैरह। अभी तक तो फिर नेक्स्ट सैटरडे की क्लास नहीं दिख रही है उसमें, संडे में दिखा अभी रहा है। अभी संडे ही दिखा रहा है।
अगर यस कोई यस चेंजेस आते हैं इस वीक में तब तो उसमें अपडेट हो जाएगा, आप देख लेना फ्राइडे को। जी अदरवाइज इस संडे होगी। फिर यस नेक्स्ट यस। वाला जो आएगा, जो थर्ड, सैटरडे सैटरडे संडे होगा हाँ राइट? थर्ड वाला जो आएगा वो फिर सैटरडे संडे होगा। मतलब ओके नेक्स्ट हमारा 11 को है, 11 में अगर नहीं होती है तो 12 को यस तो होगी ही होगी। फिर 18 से तो कंफर्म है कि सैटरडे संडे होनी ही होनी है, दैट इज कंफर्म। इस वाले वीक का मुझे भी कंफर्म नहीं है, बट 18 से कंफर्म है कि होगी ही होगी सैटरडे संडे। ठीक है, ठीक है। चलो, सो नाउ सर वी कैन रैप ओपन इट हो अप। रहा है, क्या कह रहे हो? ओपन हो रहा है। ओपन हो रहा है ना, तो फिर ठीक है, फिर तो कोई इशू नहीं है, फिर चलेगा। ठीक है, फिर तुम पढ़ पाओगे, प्रैक्टिकल भी कर पाओगे। सर इसका कुछ तो इस पोर्टल को भी पे तो नहीं करना पड़ता, जैसे AWS में 1 ईयर के लिए फ्री रहता है देखो तो मेरा इसमें? जो पोर्टल है ना, मेरा तो पेड पोर्टल है, नहीं सर, बट हम लोगों के लिए जैसे आप प्रैक्टिकल लोग के लिए फ्री ट्रायल पे यूज करोगे। हो जाएगा ना सर? हाँ फ्री में हो जाएगा। ठीक है ठीक है। सर ये जीमेल से लॉगिन होता है या कैसे? जो पर्सनल बनाते हैं ना वो जीमेल से होता है, मेरा तो जीमेल से है देखो। बट जो कंपनी में होता है वो कंपनी आईडी से होता है। जो ओरिजिनल वाला कंपनी में यही पोर्टल होगा, सेम यही होता है, नो चेंजेस, नो ऑप्शन चेंजेस, सब कुछ ऐसा ही दिखेगा। बट उनका जो लॉगिन आईडी होता है वो कंपनी के डोमेन पे होता है। और जो पर्सनल बनाते हैं प्रैक्टिकल्स के लिए वो जीमेल या आउटलुक के थ्रू बना लेते हैं, तो हम तो पर्सनल सर वाला बनाएंगे। पर्सनल तो अलाउड नहीं ऑफिस वाले लैपटॉप में, तो ऑफिस की जो मेल है हम्म। उससे करें तो कोई इशू नहीं, थोड़ी है ऑफिस की वैसे। मेल मत यूज करना एज्योर पोर्टल ओपन करने के लिए, क्योंकि फिर वो ट्रैक करेंगे कि ये बंदा कुछ कर रहा है। क्योंकि आप जब प्रैक्टिस करोगे तो स्टार्टिंग में आप सिक्योरिटी थोड़ी ना लगा रहे हो किसी चीज़ पे, तो उससे उनकी सिक्योरिटी वीक होती है, फिर वो ब्लॉक कर देंगे आपको उठा के। तो कंपनी की ईमेल आईडी से एज्योर पोर्टल मत क्रिएट करना, जीमेल या फिर outlook.com जो होता है डोमेन वाला उससे करना। जब आप कंपनी में एज ए क्लाउड एडमिन ज्वाइन करोगे, वहाँ पे आपको क्लाउड का जो एक्सेस मिलेगा वो कंपनी की आईडी के ऊपर मिलता है। वो सब मैं बताऊंगा कैसे करते हैं, बट कंपनी वाली आईडी अपनी मत यूज़ करने लग जाना, कहीं आउटलुक की आईडी यूज़ करने लग जाओ। वो उनको पता लग जाएगा, फिर वो समझ जाएंगे कि तुम कोई कोर्स कर रहे हो, तुम जॉब छोड़ के जाने वाले हो, फिर तुम्हारे साथ बुरा सलूक होगा। ठीक है, तो डोंट डू दैट। ओके सर। तो सर नाउ लेट्स कुछ कुछ कनेक्ट नेक्स्ट कंपनियां वीकेंड। सर, बोलो। कुछ कुछ कंपनियां ऐसे टाइम में बेसिक पे बढ़ाने का भी ऑफर दे देती है। वो तो करती है। अगर किस्मत अच्छी हो। राइट। चलो, फिर नेक्स्ट वीकेंड मिलते हैं ऑन सैटरडे और संडे प्रोबेबली। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, एंजॉय योर वीकेंड। वीकेंड तो खत्म हो गया, एंजॉय योर वीकडेज। बाय। ओके Yeah, थैंक यू सर। Rajesh, बाय Bye. गुड actually नाइट सर। Good night, sir.